রাশেশ্বর নাম রাখে যতে কৌমালিনী, সর্বযজ্ঞে স্বরনাম রাখিলা শ্রীবাণী। উদ্যোগ রাখিলা নাম মিত্রহিতকারী, অক্রূর রাখিলা নাম ভবভয়হারী। গুঞ্জমালী নাম রাখে নীলপিত বাস, সর্ববেতা নাম রাখে তৈপায়ন ব্যাস। অষ্টসখী নাম রাখে ব্রজের ঈশ্বর, সুরলোকে নাম রাখে অখিলের সার। বৃষভানু নাম রাখে পরম ঈশ্বর, স্বর্গবাসী নাম রাখে দেব পরাৎপর। উলমা রাখেন নাম অনাথেরই সখা, রসসিন্ধু নাম রাখে সখী চিত্র লেখা। চিত্ররথ নাম রাখে অরাতি দমন, পুলস্ত রাখিলা নাম নয়ন রঞ্জন। কাশ্যপ রাখেন নাম রাস রাসেশ্বর, ভান্ডারিক রাখেন নাম পুনঃশশধর। সুমালী রাখিলা নাম পুরুষ প্রধান, পুরঞ্জন নাম রাখে ভক্তগণ প্রাণ। রজকিনী নাম রাখে নন্দের দোলাল, আহ্লাদিনী নাম রাখে ব্রজের গোপাল। দৈবকী রাখিলা নাম নয়নের মণি, জ্যোতির্ময় নাম রাখে যজ্ঞবল্ক মুনি। আত্রিমুনি নাম রাখে কোটিচন্দ্রেশ্বর, গৌতম রাখিলা নাম দেবদিশ্বম্বর। মারিচি রাখিলা নাম অচিন্ত অচ্যুত, জ্ঞানাতীত নাম রাখে শোকানসুত। রুদ্রগণ নাম রাখে দেব মহাকাল, বসুগণ নাম রাখে ঠাকুর দয়াল। সিন্ধুগণ নাম রাখে পতুনানাশন, সিদ্ধার্থ রাখিলা নাম কপিল তপোবন। ভান্ডারী রাখিলা নাম অগতির গতি, মৎস্যগন্ধা নাম রাখে তিলকের পতি। শুক্রাচার্য নাম রাখে অখিল বান্ধব, বিষ্ণুলোকে নাম রাখে দেবশ্রী মাধব। যদুগণ নাম রাখে যদুকুলপতি, অশ্বিনী কুমার নাম রাখে সৃষ্টির স্মৃতি। অর্যমা রাখিলা নাম কাল নিবারণ, সত্যবতী নাম রাখে অজ্ঞান নাশন। পদক রাখিলা নাম ভ্রমর ভ্রমরী, ত্রিভঙ্গ রাখিলা নাম যত সহচরী। বঙ্কচন্দ্র নাম রাখে শ্রীরূপ মঞ্জুরি, মাধুরী রাখিলা নাম গোপ মনোহারী। মঞ্জুহারী सुदीप्ता जोशी माता जी अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट कौन करे आपको? सुदीप्ता माता जी अनम्यूट कीजिए। यस माता जी, यू कैन कंटिन्यू। कहीं Prabhuji, रुक। I'm reading the 103rd name, and अच्छा, Sri Krishna has 108 names. हाँ यू कैन कंटिन्यू। 101 हो गया ना, करो। मैं जी तो बोल जी। रहा हूँ। ত্রিবঙ্গ রাখিলা নাম যত সহচরী, বঙ্কচন্দ্র নাম রাখে শ্রীরূপ মঞ্জুরি। মাধুরী রাখিলা নাম গোপ মনোহারী, মঞ্জুমালী নাম রাখে অভীষ্ট পূরণ। কটিলা রাখিলা নাম মদন মোহন, মঞ্জুরি রাখিলা নাম কর্মবন্ধ নাশ। ব্রজবধূ নাম রাখে পুনভিলাষ। দ্বারিকানাথ দারিদ্র ভঞ্জন, দয়াময়ী দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ। স্বরূপে সবার হয় গোলকেতে স্থিতি, বৈকুণ্ঠে ক্ষীরদাসাহী কমলারপতি। রসময় রসিক না গরু অনুপম, নিকুঞ্জ বিহারি হরি নবঘন শ্যাম। শালগ্রাম দামোদর শ্রীপতি শ্রীধর, তার ব্রহ্মা সনাতন পরম ঈশ্বর। কল্পতরু কমল লোচন ঋষিকেশ, পতিত পাবন গুরু জ্ঞানে উপদেশ। চিন্তামণি চতুর্ভুজ দেবচক্র পানি, দীনবন্ধু দৈবকীর নন্দন যাদুমণি। অনন্ত কৃষ্ণের নাম অনন্ত মহিমা, নারদাদি ব্যাসদেব দিতে নারে সীমা। নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার, অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার।
শতবার সুবর্ণ গো কোটি কন্যা দান, তথাপি না হয় কৃষ্ণ নামেরই সমান। যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজনিষ্ঠা করি, নামের সহিতে আছে আপনি শ্রীহরি। শুনো শুনো রে ভাই নাম সংকীর্তন, যে নাম শ্রবণে হয় পাপ বিমোচন। কৃষ্ণ নাম হরি নাম বড়ই মধুর, যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর। ব্রহ্মাদি দেব যারে ধ্যানে নাহি পায়, সে ধ্যানে বঞ্চিত হলে কি হবে উপায়। হিরণ্যকশিপু ওদর বিদারণ, প্রহ্লাদে করিলা রক্ষা দেবনারায়ণ। বলিরে ছলিতে প্রভু হইলা বামন, দ্রৌপদীর লজ্জা হরি কইলা নিবারণ। অষ্টোত্তর শতনাম যে করে পঠন, অনায়াসে পায় রাধা কৃষ্ণের চরণ। ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণকারী শ্রীনন্দের নন্দন, মথুরায় কংস ধ্বংস লঙ্কায় রাবণ। বকাসুর বদাদি কালিয় দমন, নরোত্তম দাস কহে নাম সংকীর্তন। জয় রাধে শ্রী রাধে, জয় রাধে শ্রী রাধে, জয় রাধা রানী की जय, जय राधा रानी की जय। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। सुदीप्ता जोशी माता जी, हरी बोल पूरी तरह से दिल से गा रहे थे। बहुत अच्छा लगा माता जी, बहुत अच्छा लगा। आप सभी का माता जी और प्रभु जी का स्वागत है यार। सब लोग सुदीप्ता जोशी माता जी जो हमको इतना अच्छा भगवान के नाम का बारे में वर्णन करके, भगवान हमारे लिए देखो, आप कौन से भी भाषा में रहने दो, अच्छा अच्छा बुक्स है, अच्छे अच्छे उनके बारे में बोलने के लिए, उनको ग्लोरीफाई करने के लिए भजन कीर्तन सब है। तो सब लोग मिलके सुदीप्ता जोशी माता जी के लिए हरी बोल 3 बार हरि बोलेंगे। बोल हरी बोल, हरी बोल, हरि हरी बोल बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। बस बहुत अच्छा लगा माता जी, प्रभु जी सभी का, आप सभी का हरे स्वागत है आज कृष्ण के प्रभु कक्षा में। यस माता जी, प्रभु जी आप सभी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज कृष्णा बुक के लिंक पे क्लास चल रही है। कुसुमलता माता जी और महेंद्र प्रताप यादव प्रभु, कृष्णा बुक के लिंक पे क्लास चल रही है, उसमें ज्वाइन हो जाओ। इधर मैं लिंक भेज रहा हूँ। थोड़ा इधर कंफ्यूजन चलता है, कभी मैं इधर ले रहा हूँ कभी उधर ले रहा हूँ ना। और फिर यहाँ से वहां जाना मुश्किल हो रहा है। तो चलो, हरे कृष्णा। हम लोग अच्छा सा अध्याय है, छोड़ बहुत बड़ा अध्याय है। कोशिश करेंगे 7:10 इधर उधर कंप्लीट कर देंगे आज। आज आखिरी दिन है। इसके बाद में आप लोग अच्छा, आपके पास में सर्टिफिकेट आ जाएगा। आप कक्षा बिल्कुल बंद कर सकते हैं, नहीं कंटिन्यू करना है तो लेवल 2 में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम हमारे अध्याय आरंभ करेंगे, प्रार्थनाओं के साथ में अध्याय आरंभ करेंगे। डरना नहीं, अरे प्रभु ऑलरेडी बहुत लेट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, कवर कर लेंगे। हम जैसे कभी भी हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, सब लोग दर्शन कर लीजिए। जब तक भगवान की कृपा नहीं रहती है हम लोग समझ नहीं पाते, समझ के भी समझ नहीं पाते। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातान् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देवः श्री राधा कृष्ण पदान् सगणललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानि सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद
मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरू दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। सब लोग मेरे साथ में 3 बार हरे कृष्णा मंत्र पढ़ के हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। जी बोल। थैंक्स लॉट माता जी प्रभु जी फॉर ज्वाइनिंग। आज का अंतिम दिन है ये लेवल 1 का, बाद में लेवल 2 शनिवार से स्टार्ट होगा। और ये बार कल टेम्पल वालों से बात करा था तो मॉर्निंग बैच नहीं है, आप सबको मैं बोलना चाह रहा हूँ। अगर किसी को मॉर्निंग ज्वाइन करना है तो हमारा तीसरा अध्याय ऑलरेडी पिछले महीने का स्टार्ट हुआ है, तो आप हमारे निर्गुणा माता जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वरना क्षमा माता जी है, ये लोग वहाँ के को होस्ट है। आपको आप लोग एक्चुअली वहाँ पे ज्वाइन हो जाना, कहाँ इवनिंग बैच पे ज्वाइन होके आप एडमिन को बोल देना कि हम लोगों को ज्वाइन करना है मॉर्निंग, तो मॉर्निंग ज्वाइन कर सकते हैं। इवनिंग भी काफ़ी काफ़ी सीनियर सीनियर लोग पढ़ाते हैं, आपको ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ मेरी ही कक्षा में ज्वाइन करना, मैं नहीं बोलता हूँ, आप किधर भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये बार मॉर्निंग बैच नहीं है, ओनली इवनिंग बैच लेवल 2 का रहेगा। लेकिन अगर फिर भी आपको मॉर्निंग ही ज्वाइन करना है तो आप क्षमा माता जी को और निर्गुणा माता जी को दोनों को संपर्क कर सकते हैं। वो आप लोगों को पहले वहाँ ज्वाइन करना, वहाँ ज्वाइन करके फिर आपको ये लिंक दिया जाएगा, यहाँ पे आओ। क्षमा चलो, प्रभु जी। जय श्री राधे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, लेवल 2 कितने दिन का रहेगा? लेवल 2 माता जी एक्चुअली देखा गया तो 18 18 अध्याय है, 18 18 सप्ताह का रहेगा। लेकिन मैं अगर लेऊंगा तो 1-2 सप्ताह ज्यादा हो जाएगा, ये समझ के चलो। यानी 20 सप्ताह, एक अध्याय एक सप्ताह में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरा अध्याय थोड़ा मेरे को बड़ा रहता है, 18वां अध्याय भी थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ज्यादा होता है। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, 20 20 सप्ताह, 20 सप्ताह यानी 5 महीने होता है। देखो, खाली हफ्ते में 2 दिन आपको ज्वाइन करना पड़ता, ठीक है। देखो आपके पास में समय है तो, लेकिन एक एक 700 श्लोका है ना माता जी, 700 श्लोकों में भगवान कितना रहस्य छुपा हुआ है, वह सब हम लोग दिखा लेके आएंगे, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अगर हफ्ते में हमारी सिर्फ 2 दिन क्लास रहेगी तो बाकी दिन तो हम फ्री रहेंगे, हम क्या करेंगे प्रभु जी? मैं बताया ना, बाकी दिन कृष्णा बुक की हमारी क्लास चलेंगी, कृष्ण लीला चलते जाएंगी, 7:15 से वो रुकेगी नहीं। और मंदिर में डेली 4:30 बजे मंदिर मंगला आरती होती है, फिर मंदिर मंदिर में तुलसी आरती, नरसिंह आरती, ऐसा सब होती है। फिर जपा करते हैं हम सब भक्त, अकेले अगर जपा करे तो अरे मैं अकेली कर रही हूँ, लेकिन भक्तों के साथ सब लोग वीडियो टीचर्स भी रहते हैं। मैं भी कभी कभी ज्वाइन करता हूँ, जब अगर क्लासेस नहीं रहते हैं तो मोबाइल डाटा थोड़ा ज़्यादा रहता है तो मैं भी कभी कभी ज्वाइन कर लेता हूँ। तो हम सब लोग रहते हैं वहाँ पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे जो टेम्पल के प्रेसिडेंट है नाम निश्चयदास प्रभु जी, वो स्वयं बैठे हुए रहते हैं, वो भी चैंटिंग करते हैं। तो भागवतम का क्लास चलता है 8 बजे से, रेगुलर चलता है ये। आप ये कोर्स में बंद भी हो जाओ, कभी नहीं आए, टीचर नहीं आए, लेकिन भागवतम का क्लास 8 बजे हिंदी में चलता ही जाता। तो आप लोग जब ग्रुप पे रहते हैं तो ये क्षमा माता जी है, निर्गुणा माता जी आप लोगों को लेटेस्ट लिंक आपको भेजते जाते हैं, ठीक है ना। तो वह जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं वो कक्षाएं। ओके। ठीक है, ओके माता प्रभु जी, क्लास कब से स्टार्ट होगा? कौन सी? लेवल 2 का। आप ज्वाइन तो हो जाओ, सैटरडे से शनिवार से स्टार्ट होगा, ठीक है। जी प्रभु जी। और शाम का मॉर्निंग? क्लास, शाम मॉर्निंग तो का। हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो उसमें तीसरा अध्याय हम लोग लास्ट संडे आरंभ करें, आप भी थे ना, आप 6 लोग थे ना। तो वो मैं पहला और दूसरा अध्याय फिर कभी किसी दिन मैं फ्री रह सक कर लूंगा। आप तीसरे अध्याय से ज्वाइन करना पड़ता आपको, अगर मॉर्निंग में ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, हम लोग 18वां अध्याय अभी आरंभ करेंगे। तो हरे कृष्ण माता जी प्रभु जी, अभी हम लोग क्या करेंगे, आपके जो भी डाउट्स है मैं फिर से लूंगा लेवल 2 के बारे में, आप डरो मत। और संपर्क में रहो निर्गुणा माता जी से और हमारे जो को होस्ट है, एडमिन है, उन लोगों से। आज का अध्याय का नाम इतना अच्छा अध्याय है,
तो भगवान क्या बोल रहे हैं, ये पूरा कंक्लूजन है, भगवान बोलना क्या चाह रहे हैं। जैसे कि भगवान स्टार्टिंग में ये बोले, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, ठीक है भाई, अब ये पूरा हो गया। भगवान फाइनली हमको लास्ट में आकर, अरे आप बोलना क्या चाह रहे भाई। कभी हम लोग बोलते हैं, वाद विवाद चलता है, ठीक है जाने दो, आपका मत, फाइनल कंक्लूजन बोलो, मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो भगवान यहीं पे बोल रहे हैं। तो इसको बोलते हैं गीता का सार बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, सारांश बोलो, गीता का फाइनल कंक्लूजन बोलो, है ना, कुछ भी बोलो, लेकिन भगवान का अंतिम संदेश यहाँ पे छुपा हुआ है, हम भक्तों के लिए, हम भक्तों के लिए, ठीक है। और पहले के जो कुछ एक आधे श्लोकाए रहते हैं अध्याय में, आधा थोड़ा आपको ऐसा लगता है सतोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, रजोगुण वहां पे ही रहता है, लेकिन लास्ट के 50 के बाद में, 55 के बाद में बहुत अच्छे श्लोका आते हैं। मैं आज किसी को भी म्यूट नहीं करने वाला हूँ, आप अगर आपको मेरे को तकलीफ देना है तो बिल्कुल दे सकते हैं, आप अनम्यूट अनम्यूट ही रहिए, कोई बात नहीं। ठीक है सतेंद्र मलिक प्रभु, ध्यान किधर है आपका। पहला श्लोक, अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो त्वमिच्छामि वेदितुम् यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशी निषूदना। वो बोल रहे हैं, अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, हे भगवान, मैं त्याग का उद्देश्य जानना चाह रहा हूँ। जो मैं स्टार्टिंग में त्याग नहीं, मेरे को युद्ध नहीं चाहिए, मेरे को प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, राज नहीं चाहिए, हाँ, जो मैं वो त्याग कर रहा था ना, वो करेक्ट था क्या। हाँ, फिर नहीं तो वो जो त्याग है, क्या मैं वो सतोगुण में कर रहा था, रजोगुण में कर रहा था, तमोगुण में कर रहा था। क्योंकि आप बोले ना, कौन सा भी कार्य ये गुणों में करते हैं, तो अर्जुन को डाउट आया। जो मैं वो त्याग कर रहा था पहले अध्याय के दिन, और हे केशी निषूदन, हे अने केशी केशी राक्षस जो को, केशी असुर को मारे से वाले, हे भगवान, मेरे मन में भी कई सारे असुरों के वैसा मेरे हृदय में प्रश्न उठ रहे हैं, संदेह उठ रहे हैं, डाउट्स, क्या क्या करना बोलो ना। हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाह रहा हूँ। मैं समझ रहा था जंगल में जाके बाबा जी बन जाऊंगा, सन्यासी बन जाता हूँ, लेकिन मैं मेरे गुरु को नहीं मारता हूँ, ऐसे समझा ना। हाँ, तो फिर वो जो सन्यास में लेना चाह रहा था, वो जो ठीक है या गलत है, फिर आपका उद्देश्य बोलो, फिर मैं जो एक्चुअली सन्यास क्या है मेरे को डिटेल में समझाओ ना। तो भगवान क्या करते हैं, समझाते हैं, फिर तमोगुण रजोगुण के बारे में बोलते हैं। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणं न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्रहुस्त्यागां विचाक्षणः। क्या बोल रहे हैं, भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान विद्वान लोग सन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो अगर हम लोग जनरली क्या करते हैं, यस, जो भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों का परित्याग, वो विद्वान लोग क्या कहते हैं, मेरे को ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, मैं जंगल में चला जाऊंगा, सन्यासी बन जाऊंगा, कपड़े बदल लूंगा, हाँ, भगवा कपड़े पहन लूंगा, तो वो लोग क्या करते हैं, कर्मों को ही त्याग देते हैं। हाँ, तो प्रभु जी हम तो देखो गए तो ना प्रभु जी, अब हम तो गृहस्थ में हैं, फिर गृहस्थ में हम सन्यास का जीवन कैसा जीना, फिर वो भी नहीं मालूम। तो वो बोल रहे हैं, समस्त कर्मों के फल को त्यागना, मैं ये करूंगा ये मिलेगा, वो करूंगा मेरे बच्चे आगे जाके मेरे को देखेंगे, मेरा बैंक में बैलेंस मेरे को आगे मेरे को काम में आएगा, तो ये जो भी बिजनेस कर रहे हैं मेरे को आगे ऐसा बेनिफिट देगा। आपका काम क्या है, एग्जाम को पढ़ना है, बिजनेस करना आपका काम है, आगे जो फल आएगा उसको जो त्याग दे, उसके उसमें रुचि जो नहीं लगा दिखाता, वो क्या है, उसको बोलते हैं बुद्धिमान लोग त्याग। और भी अच्छा सा भगवान बताते हैं कि कैसे कैसे प्रकार के लोग किस किस तरह के त्याग करते हैं। जैसे कि सन्यास में क्या होता है, जीवन का त्याग कर्म क्या होता है, उन गतिविधियों को छोड़ दे जो भौतिक इच्छा पर आधारित है। और त्याग यानी सन्यास तो मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जला गया जंगल में, त्याग यानी परिणाम को, रिजल्ट को हम छोड़ देते हैं।
लेकिन हमको क्या करना है? हाँ, भागवत में बताया गया। और हमको भगवत गीता के माध्यम से भगवान बार बार बता रहे थे, तुम क्षत्रिय हो बेटा, तुम्हारा काम युद्ध करो, युद्ध लड़ो, युद्ध लड़ो। ये नहीं कि मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, नहीं। तो हमको भी भगवान बोल रहे हैं, तुम अगर क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का निर्धारित कर्तव्य करो। हाँ, तुम अगर वैश्य हो, वैश्य का निर्धारित कर्तव्य करो। और हाँ, और चाहे जो भी वर्ण में हो, अपना निर्धारित कर्तव्य को छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि भागवत में बताया गया, अतः पुंभिर द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रमा विभागशः। ये वर्ण अपने अपने गुणों के हिसाब से गुण कर्मा विभागशः। तो वहां पे हमको बताया गया, हमारा जीवन क्यों करना है? समसिद्धिर हरितोषणम के लिए करना है। समसिद्धिर हरितोषणम, यानी हमारा जीवन हम सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए मिला है। ठीक है ना? तो हमारा निर्धारित, अब पत्नी है, पत्नी का कर्तव्य करना, बच्चा है जो छोटा, जो स्कूल में जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है, भाई उसका निर्धारित कर्तव्य क्या है? पढ़ना है। वो कर्तव्य करना ही है, तो कर्तव्य कभी भी नहीं छोड़ना है। अगर ये अगर हम छोड़ रहे हैं, देन अगर हम लोग वो अलग अलग लोग रजोगुण वाले क्या करते हैं, जो तमोगुण में वाले क्या करते हैं, अब देखेंगे। और वो जो अर्जुन क्या कर रहा था, युद्ध नहीं करता हूँ, त्याग रहा था ना, तो वो क्या है, किस तरह से है, वो भी हम थोड़ा सा देखेंगे, डिस्कशन करेंगे। निर्धारित कर्तव्य का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। भ्रम के कारण कोई भी निर्धारित कर्तव्य छोड़ रहा था, वो तमोगुण में है। तो निर्धारित कर्तव्य अर्जुन का क्या था? युद्ध लड़ना। वो कंफ्यूजन में आ गया, मेरे अपने लोगों को क्यों मारूं? हाँ, दिस इज व्हाट, मैं नहीं लड़ूंगा। तो वो क्या कर रहा था? तमोगुण में वो अपना निर्धारित कर्तव्य को छोड़ रहा था, अर्जुन। और कोई भी व्यक्ति जो इस डर से फलदायक गतिविधियों को छोड़ता है, निर्धारित कर्तव्य को छोड़ देता है, तो उसे कभी भी त्याग का परिणाम नहीं मिलता। रजोगुण वाले क्या करते हैं? मैं युद्ध लड़ूंगा तो मेरा ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, मैं मरने के भी चांस है, नहीं मैं नहीं लड़ूंगा। यानी ये रजोगुण वालों को कुछ ना कुछ त्याग से या तो मिलता या तो नहीं मिलता, ये डरता रहता है उन लोगों को। तो वो क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। और सतोगुण में जो व्यक्ति रहता है, जो बुद्धिमान है, जो अपना निर्धारित कर्तव्य को पूरा करता है, क्योंकि वह यह जानना चाहिए कि भौतिक संसार और फलों के प्रति लगाव का त्याग करे, ये इम्पोर्टेंट है। सतोगुणी में रह के हम लोगों को क्या करना है? अच्छा, मेरे को तो मेरा कर्म करना है, कर्म करे बाद में मेरा काम पेड़ को बीज बोना है। हाँ, उसको बड़ा करे बाद में फूल आता, फल आता, उसमें रिजल्ट नहीं करना है, लेकिन मेरा काम कर्म करना है। थोड़ा सा ये थोड़ा सा स्टार्टिंग स्टार्टिंग ऐसा लगता है कि प्रभु जी क्या बता रहे हैं, कि सिर पे से जा रहा है, ऐसा समझ में आता है, लेकिन झेलना ही पड़ता है, अध्याय में है। एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि ते मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। भगवान बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? जो भी लोग ये लिंक पे ज्वाइन हुए, पूनम माता जी, सुमन कुल्लर माता जी, लता आशा, कुसुम लता निगम माता जी, कृष्णा बुक की लिंक पे क्लास ले रहा हूँ, उसमें आ जाइए। मैं लिंक डाल रहा हूँ चैट में, कृष्णा बुक में। प्लीज कृष्णा बुक का लिंक जो 7:15 को क्लास रहती है, उसमें आइए। एतानी अपि तो एतानी अपि तो कर्माणि, यहाँ पे क्या बताया गया? इन सारे कार्यों को, किसी प्रकार की आसक्ति, भगवान बार बार बोलते हैं हम लोगों को, आसक्त। हाँ, हम लोगों को आसक्ति कहाँ पे डुबा देगी? कि यहीं यहीं पे हमको जन्म लेना है क्या? आप डिसाइड कर लो। तो आप क्या करो? ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा बिजनेस, मेरा बंगला, मेरा गाड़ी, नहीं। तो भगवान फिर बोल रहे, ये जो भी कर्म करते हैं, आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न किया जाए। अब देखो, एक बार बाढ़ आ गई, हाँ, सडनली कई पानी में बह के गाय जा रही है, बकरी जा रही है, सब जा रहे हैं, क्या तो कोई और लोग जा रहे हैं, तो आप क्या करें? सडनली रस्सी डाल के उनको पकड़ के खींच रहे हैं, खींच रहे हैं। लेकिन आपका कुछ उसमें निजी क्या है? स्वार्थ नहीं है, मैं ये लोगों को बचा रहा हूं, इनको दास बना के रखूंगा, नहीं। तो आप क्या कर रहे हैं? बिना कोई आशा के, बस अरे भाई वो जा रहा है, उसको पकड़। तो ये क्या है? हमारा कर्तव्य है कि हम लोग ऊपर है, अच्छा है, तो हम लोगों को जो गिर के पानी के बहाव में जा रहा है, उसको उठाना चाहिए।
आज हमारा कर्तव्य है गीता का नॉलेज। हर कोई हिंदू हिंदू बोलता है, सनातन सनातन बोलता है। हम लोग गीता का नॉलेज प्राप्त कर लिए, नाव में बैठ गए। अब हमारा काम क्या है, जो पानी के बहाव में जा रहा है उसको पकड़ के, भैया तू आ जा, ये नाव तो भगवत धाम जा रही है, तू भी आ जा। ये बोलना चाहिए। लेकिन इसमें आपका स्वार्थ है क्या? नहीं है। भगवान के भक्ति में आप जोड़ रहे हैं, आपका कुछ स्वार्थ नहीं है। इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। भगवान बोल रहे ये मेरा मत है। अब आगे जाके ये मेरा, और एक भी बोले लास्ट में, क्या बोल रहे हैं, अंतिम मत है, लास्ट। मैं कंक्लूड कर दे रहा हूँ, लास्ट लास्ट बोल रहा हूँ जो भी श्लोकाओं को। अब भगवान बोल रहे हैं, पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि। वो बोल रहे हैं, हे महाबाहो अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। जो भी अगर हम काम करते ना, अगर मैं बोला मैं कौन हूं मालूम, मैं बिजनेस अच्छा करने वाला हूँ, मैं जॉब अच्छा करने वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ, सब ऐसा बोलते हैं ना, भगवान बोल रहे बेटा तुम कारण नहीं है, 5 कारण है। अर्जुन को बोला गया, अर्जुन अगर बोलेगा मैं युद्ध लड़के मैं जीत रहा हूं, नहीं, क्या अर्जुन जीत रहा था क्या? उसका कारण क्या था? अर्जुन की जीत में अर्जुन के 2 घोड़े थे। हाँ, अर्जुन जिस रथ पे बैठा हुआ था वो भी इम्पोर्टेंट है, वो घोड़ों को भी लेके जाने वाले इम्पोर्टेंट है, और घोड़ों को सही रास्ते पे लेके जाने वाले सारथी वहां पे बैठे हुए हैं। और अर्जुन के पास में जो पाशुपतास्त्र दिए, दिव्यास्त्र दिए, वो भी लोग ग्रेट है। ये सब क्या है? फिर अर्जुन को वो मंत्र, जब जब अग्नि को प्रकट करना है, वो मंत्र याद आ रहा था। तो गुरु की कृपा है उसके ऊपर कि वो याद आ रहा था। वहां पे कर्ण भूल रहा था, कर्ण भी बाण मारने गया, नीचे से ही मैं लड़ूंगा, लेकिन वो टाइम पे उसको क्या हो रहा था, विस्मृति, यानी वो भूल रहा था। क्योंकि गुरु का क्या था वहां पे, श्राप था। गुरु बोले तेरे को ये विद्या काम में नहीं आएगी बेटा। वो कितना मंत्र को, अग्नि को मैं प्रकट करूंगा, इसको प्रकट करूंगा। तो ये क्या है, अर्जुन अगर बोल लिया, डिंगे मार रहा है कि मैं युद्ध जीत रहा हूं, तो भगवान बोल रहे हैं वेदांत सूत्र के हिसाब से 5 कारण हैं। वो 5 कारण क्या है, हम लोग देखेंगे हमारे लिए भी। हाँ, तो जैसे कि ऐसा बताया गया ये श्लोका में, एक तो कारण क्या है, कर्म का स्थान। तो हम लोग कोई भी अगर कंपनी लगाना चाह रहे हैं, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले जगह ढूंढते हैं बिजनेस स्टार्ट करने। हाँ ओके, पैसा खरीद लिए, 2 एकड़ 10 एकड़ जमीन खरीद लिए, अब कंपनी लगा रहे। तो कंपनी लगाने के लिए वहां क्या चाहिए, कर्ता, इंजीनियर, नौकर चाकर, वहां पे क्या चाहिए, वहां लोग, लेबर लोग चाहिए। तो हम लोग लेबर को ढूंढते हैं, इंजीनियर को, कॉन्ट्रैक्टर को, हाँ, ढूंढते हैं। ये हो गया कर्ता, दूसरा। हाँ, फिर बाद में तीसरा क्या है, अब मेरे पास में सीमेंट चाहिए, स्टील चाहिए। हाँ, ये हो गया तीसरा। फिर बाद में चेष्टा, क्या करना है मेरे को, क्या मैं सीमेंट ला लिया, स्टील ला लिया, आदमी लोग है, जमीन है। चौथा क्या है कारण, चेष्टा, तो मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, हाँ, हीरो होंडा बाइक बनाना चाह रहा हूँ, नहीं मारुति की कार बनाना चाह रहा हूँ, नहीं नैनो की कार बनाना, क्या करना चाह रहा हूँ, मेरे पास में अब मॉडल है, हाँ सेलफोन बनाना चाह रहा हूँ। तो ये चेष्टा हो गई। एंड फाइनली चौथा क्या है, भूकंप आ गया तो, भूकंप आ गया तो, हाँ, अगर नहीं प्रभु जी, तूफान आ गया तो, साइक्लोन आ गया, कुछ भी अगर आ गया, कि आप ये कंपनी पूरा लगा के भी सब कंपनी में पानी आ गया, तो कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं 5वां कारण को जानो। ये 5वां कारण क्या है, मैं परमात्मा, मेरे परमिशन के बगैर आप पत्ता भी नहीं हिल सकता। अब हम लोग हमारी लाइफ में, मैं कभी भी हर श्लोका को क्या बोलता हूँ, लेवल 2 भी लेता हूँ, लेवल 1 भी लेता हूँ, प्रैक्टिकल देखना। यही श्लोका को प्रैक्टिकल लाइफ में, अब मैं तो किचन में, मैं तो वो हूं ना प्रभु जी, हाउस वाइफ, मैं क्या करूं। यस, तो हाँ, घर में देखेंगे अगर यही 5 कारण क्या है। अब समझो लीलावती माता जी को क्या बनाना है, गुलाब जामुन कन्हैया के लिए। तो लीला माता पहले वो कहाँ पे जाएगी, बेडरूम में जाएगी क्या गुलाब जामुन बनाने, हॉल में जाएगी क्या, नहीं, वो कहाँ पे जाएगी, किचन में जाएगी। हाँ, मैं अब किचन में जाऊंगा भगवान को गुलाब जामुन बनाने। तो मैं प्लेस ढूंढा, क्या, किचन, जगह, कर्म का स्थान किचन हो गया। फिर अब मेरे को सामान चाहिए,
तो मैं स्टोव देखूंगा, वहां पे बर्तन देखूंगा, चम्मच देखूंगा, कढ़ाई देखूंगा, ये तेल जो भी है, घी जो भी है, वहां पे मैं ढूंढ रहा हूँ। ये मेरे क्या है, वहां पे देखो हर चीज, यहाँ पे हम प्रैक्टिकली 5 चीज रहते हैं। पहले भगवान क्या बोले हैं, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, कर्म का स्थान किचन हो गया। अब स्वयं माता जी क्या कर रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, यानी तो मैं जा रहा हूँ, मैं कौन हूँ, करता हूँ। फिर वहां पे विभिन्न इंद्रियां क्या है, ये सब आइटम वहां जो रखे हुए हैं, जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं गुलाब जामुन बनाने। ये चेष्टा क्या है, मेरे को गुलाब जामुन खाना है, गुलाब जामुन बनाना है। ये चौथा है, यस, अल्टीमेटली ये सब आप कर लिए, किचन में भी चले गए, सडनली भूकंप आ गया, सडनली धरती हिल गई, किचन एक साइड हो गया, हाल एक साइड हो गया, आप बना सकते क्या? तो भगवान वही बोल रहे हैं, हर चीज के लिए परमात्मा जरूरी है, मैं जरूरी हूं बेटा। अब आगे बढ़ेंगे। ये चीज, ये जो जान लेता है, अगर कोई बोलता है मैं ग्रेट हूं, तो तू ग्रेट नहीं है, तेरे ऊपर भगवान है, भगवान ग्रेट है, वो परमिशन दे रहा है, तू कर रहा है। ठीक है ना माता जी? तो अगर हम लोग सर्कस जाना है तो टिकट लेते हैं, मूवी जाना है तो टिकट लेते हैं, कहाँ पे भी जाना है तो जू पार्क में, जू को भी, जानवर को भी देखना है तो टिकट लेते हैं। अरे यहाँ, हमको हमारा ठाकुर वापस वो बुला रहा है, गोलोक धाम में बुला रहा है, तो हमको भी टिकट लेना है ना। तो वो टिकट क्या है, सिर्फ और सिर्फ हरि का नाम है, हरि का नाम ही हमको टिकट है। ठीक है, अब हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ज्ञानम कर्मा च त्रिधैव गुण भेदवता प्रोच्यते गुण संख्ये, वो बोल रहे हैं। अब प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म तथा कर्ता, तीन तीन भेद है। हाँ, अब मैं तुमको वो बताता हूँ, सुनो थोड़ा सा। तीन तीन अलग अलग बताते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हुए चले जाएंगे अपन, वरना बहुत लेट हो जाएगा। सर्वभूतेषु ये ये नैकं भावम अव्ययम ईक्षते अविभक्तम विभाक्षेत्सु तज्ज्ञानम विधि सात्विकम। यानी जो सतोगुण में रहता है, उसका ज्ञान क्या रहता है, जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है। यानी सतोगुणी व्यक्ति क्या करता है, कुत्ता रहने दो, बिल्ली रहने दो, सब लोग रहने दो, काला गोरा पैसे वाला, सब में एक ही देखता है कि भैया ये सब में तो परमात्मा है। हाँ हाँ, जैसे कि मैं अष्टवक्र की, जब दशरथ महाराज की, और सॉरी, जनक महाराज का भी एक एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे थे कि एक व्यक्ति 8 अंगों से टेढ़ा था, और उस पे सब लोग हंस रहे थे। हम लोग वो कहानी में डिस्कस करें, ये भी हंसने लगा, और ये देखने लगा कि आप लोग मेरे शरीर को देख के हंस रहे हैं, मैं आपको देख के हंस रहा हूँ, आपके अंदर एक ही परमात्मा है। आप ना तो राजा है ना तो प्रजा है, आपके अंदर परमात्मा को देख के मेरे को आनंद आ रहा है, इसलिए मैं हंस रहा हूं कि आप वो एक है, वो नहीं समझ पा रहे, मैं अलग आप अलग समझ रहे हैं, मैं हंस रहा हूं। तो आज जगह से टेढ़ा व्यक्ति, वो इतना ज्ञानी है, सब दंडवत डाल दिए। जनक महाराज भी क्या करे, दंडवत डाल दिए, अरे आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तो ये हमको कथाएं क्या होती है, सतोगुण में है, सबको एक समान देखता है। रजोगुणी व्यक्ति क्या देखता है, पृथक्त्वेना तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान। वो बोल रहा है, व्यक्ति सर्वेषु भूतेषु, जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो, अलग, तुम अलग हो, मैं पैसे वाला हूं, तुम गरीब हो, तुम ये तो जानवर है, सब में अलग अलग जो देखता है, राजसी जानो। तामसी कौन कौन है, फिर वह ज्ञान, तुम्हारे पास में ज्ञान है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार का कार्य जो अति तुच्छ है, जो वेस्ट कार्य है, उसको ही सब कुछ मान रहे हो। देखो मैं क्या कर रहा हूं मालूम, भीख मांग रहा हूं। भीख मांगना भी बहुत बड़ा कला है, लोगों के घर पे जाना पड़ेगा, लोगों के गालियां सुनना पड़ेगा, मैं भीख मांग रहा हूं। अरे भैया, जो छोटा कार्य है, जो एकदम वेस्ट कार्य है, हाँ, कुछ भी कार्य हो सकता है, वो अपने आप को क्या करेगा कि मैं वो कार्य बहुत अच्छा कर रहा हूं, लेकिन वो उससे क्या भगवत धाम जाएंगे क्या? हम नहीं जाएंगे। हमारा मूल उद्देश्य क्या रहना चाहिए, 2 सेकंड
2 मिनट, 2 सेकंड, 1 सेकंड, चाहे कितना भी हो, 1 सेकंड भी अगर हम लोग वेस्ट कर रहे हैं तो फिर वापस नहीं ला रहे, तो ये सेकंड क्या हम मेरे को भगवत धाम लेके जाएगा क्या? तड़पना चाहिए। नियतम संग रहितम, अरे वो बोल रहे हैं जो कर्म नियमित और जो आसक्ति राग और द्वेष से रहित है, राग भी नहीं रहना, द्वेष भी नहीं रहना, हाँ, मेरे को उसके प्रति लगाव भी नहीं रहना, वो नहीं आना, नहीं आना, द्वेष भी नहीं रहना, तो वो सात्विक कहलाता है। और यत्तु कमेप सुना कर्मा शंकरेना व पुनः क्रियते, हम लोग क्या देख रहे हैं, लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नियम निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से मैं ये कर रहा हूं, मैं ये प्राप्त करूंगा, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत सारी इच्छाएं हैं। एक रजोगुणी व्यक्ति में बहुत सारी इच्छाएं रहते हैं, बहुत, हाँ, पैसा है उसके पास में और पैसा चाहिए, घर है और घर, कार है, किसी के घर में देखो 10-10 कार रहते हैं, 20-20 कार रहते हैं, उसको आनंद नहीं आता, रजोगुणी व्यक्ति है ये। और कर्म का जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करता है, शास्त्रों में बताया गया भैया तू ही भक्ति कर ले, तू यज्ञ कर, ऐसा कर, ऐसा कर, नहीं मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूंगा, मैं सोता जाऊंगा रोडों पे, तो ये लोग क्या है, तामसी है, क्योंकि अपना परिवार को वो देखभाल नहीं करते, भावी बंधन की परवाह नहीं करते, किए बिना हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, तामसी है। दूसरे जीव को मारते हैं क्योंकि उनको जीव का टेस्ट देखो, माता जी प्रभु जी, जीव कितनी बड़ी है, बस यहां से लेके कंठ अभी आता भी नहीं अंदर, यहां तक ही टेस्ट रहता है, बस इतना सा टेस्ट, ये टेस्ट के लिए हम गले से जो भी उतर जाता है पेट में, चाहे करेला रहने दो, नीम का पत्ते का जूस रहने दो, चाहे मीठा रहने दो, लेकिन हम लोग ये छोटी सी जीभ के लिए क्या करते हैं ना, टेस्ट के लिए भागते हैं, लेकिन वो अंदर गए बाद में टेस्ट लेस रहता है, कुछ भी जाओ अंदर, जो अंदर डाल रहे हैं वो पचाता है, हमारा शरीर भगवान दे दिए, उसमें कुछ केमिकल दिए, वो केमिकल उत्पन्न करता है, वो केमिकल से वो पूरा पच जाता है जठराग्नि में। लेकिन हम ये थोड़ी सी 2 इंच की समझो, थोड़ी देर के लिए कहते हो तो 3 इंच की दीवार जीभ के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं लोग, बड़े दूर दूर रेस्टोरेंट जाते हैं, मेरे फ्रेंड्स है, शनिवार आए तो एक ग्रुप है मेरा, हमारा एक अच्छा सा ग्रुप है डिग्री का, वो ग्रुप में डालते हैं आज कौन पार्टी दे रहा, चलो आज तू पार्टी दे रहा, नहीं नहीं नहीं, वो तो यहाँ नहीं, सिटी के ना 25 किलोमीटर के बाद में अच्छा सा नया रेस्टोरेंट है, अच्छा सा वो है, ये है, वहां जाएंगे। तो जीप के लिए देखो क्या कर रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटे गाड़ी चलाएंगे, लेकिन हम खाएंगे, स्वादिष्ट चीज खाएंगे, तो ये क्या है, तमोगुण है, समझना चाहिए। मुक्त संगो नहम वादी धृति उत्सना, वो बोल रहे हैं जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है, सफलता अथवा असफलता में विचलित नहीं होता, तो हमको सात्विक में रहना है। ये पूरा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तीनों भी बता रहा हूँ, हमको कहाँ पे रहना है। अगर हम तमो में हैं, जा रहे दूर जाके दारू पी रहे, दूर जाके नॉनवेज खा रहे, टेस्ट अच्छा है, तमोगुण हो गया, अभी बताया। अब हम लोग ना तो तमो में रहना, ना तो रजो में रहना, किसमें रहना, सतो में रहना। मैं हमारा उद्देश्य भगवान वो समझाते हैं, जो सतो में रहता है वो भक्ति में जल्दी प्रगति करता है, सफलता अथवा असफलता में विचलित रहते हैं। आज मैं पास हो गया, सत्येंद्र मलिक प्रभु, यस मैं पास हो गया, खुश नहीं, कभी फेल हो गए, नहीं मैं बहुत दुखित हूं, नहीं, भगवान बोल रहे हैं हमेशा समान, वो सात्विक बुद्धि है उसकी। और लेकिन वह रागी कर्मा फला पेप्सुर राग, लेकिन वह कार्यकर्ता अपना श्रम के फल से जुड़ा हुआ है, मैंने ये कंपनी लगाया है, मेरी कंपनी है, मैं ये कंपनी का बॉस हूँ, मैं वो कंपनी में इसको क्या आ गई, दिलचस्पी आ, वो कंपनी में इसका दिल आ गया कि वो कंपनी को छोड़ के नहीं रह सक रहा, तो ये क्या हो गया, जो लालची है, ईर्ष्यालु है, अपवित्र है, और खुशी और संकट से आगे बढ़ता, कंपनी में पैसा आया खुश, कंपनी में पैसा नहीं आया वो रोता है। लेकिन सात्विक सतोगुणी व्यक्ति, ठीक है आज नहीं आया तो भी मैं प्रयत्न करूंगा, पैसा आ गया तो भी लोगों को खुश खुश नहीं रहेगा, सिंपल जैसा है वैसा ही रहेगा वो। और जो तमोगुणी व्यक्ति क्या रहता है, हाँ, जो शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध, हाँ समझो हम लोग
वो बेच रहे, क्या हथियार बेच रहे, बम बना रहे, ये सब क्या है? शास्त्रों में नहीं बताया गया भाई दूसरों को मारने के लिए ही कर रहा है वो कार्य। ठीक है, वो अलग बात है, हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए हम कुछ बना रहे हैं, रख ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन दूसरों को बेच रहे हैं मारने के लिए, ये गलत बात है। भौतिकवादी हठी कपटी रहता है, अन्यों को अपमान में पटु रहता है, आलसी रहता है, कभी भी सदैव खिन्न रहता है तथा काम करने में दीर्घ सूत्री रहता है, लेट करते जाता है। गवर्नमेंट ऑफिसों में देखो, जो काम 10 मिनट में होता है वो लोग 10 दिन लगाते हैं। हाँ, इंटेंशनली अवॉइड करते हैं, काम नहीं करते हैं, 8 घंटे का काम नहीं करते, 1 घंटा करते हैं, और हाँ, पैसे पूरे पूरे कितना लेते हैं, जो प्राइवेट जॉब वालों से भी ज्यादा ही तनख्वाह रहती है उनकी। हाँ, उनकी वेतन बोलते हैं ना, सैलरी ज्यादा रहता है। बुधेर्भेदम धृतश्चैव गुणस्त्रिविधम शृणो। वो बोल रहे हैं, देख बेटा, अब मैं तुमको ये बताऊंगा, डिटर्मिनेशन। जो लोग यस मैं करूंगा, 18 दिन तक मैं क्लास में बैठूंगा, ये क्या है? आपका डिटर्मिनेशन है, जो आप सुबह में 6 बजे उठ के बैठ रहे हैं। हाँ, थोड़े लोग, अब भगवान क्या बता रहे, डिटर्मिनेशन कैसा रहता है लोगों का। देखो, हाँ, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्ये भया भये बंधम मोक्षम च। यह व्यक्ति वो बोल रहे हैं, हे प्रतापुत्र, सतोगुणी व्यक्ति जो हमको होना चाहिए, कैसा रहना है? जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। हाँ, किससे डरना है, किससे नहीं डरना है, और क्या मेरे को आगे जाके बंधन में रखेगा, और क्या मेरे को मुक्ति मुक्ति दिलाएगा, वो हमको क्या बताता है? सतोगुणी में की बुद्धि क्लियरली बताती है, उसका क्लियर विजन रहता है, मैं ये करूं या ना करूं। ठीक है ना? और जो तमोगुण में रहता है, रजोगुण में रहता है, यया धर्मम अधर्मम चा कार्यम च कार्यम एव चा। वो अन्याय भी करेगा, दूसरों पे पैर रख के पैसा कमाएगा, बाद में नरक जाएगा। वो उसको आज तो मेरे को एंजॉय करना है, तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं, जो बुद्धि, उसकी बुद्धि कहीं में लग गई, अधर्म में। क्या करना, क्या करना नहीं करना, अधर्म से भी, चाहे कुछ भी करूंगा, मैं पैसा कमाऊंगा, बस मेरे को सुख भोगना है, मेरा नाम आना है, इसलिए तो वो लोग क्या करते हैं, वो कभी भी क्या करते हैं, कुछ भी करके हमारे को क्या करना है, करना और अकरणीय में क्या करना है, भेद नहीं है। क्या करे क्या ना करे, कैसी मुश्किल है, तो वो लोग मुश्किल नहीं है, वो लोग मालूम है उन लोगों को, फिर भी वो लोग, उनकी बुद्धि, उनको मालूम है ये नहीं करना है, फिर भी करते और चले जाते रहते हैं, क्योंकि हमको यस अधर्मम धर्मम इति या मन्यते सम। वो जो अधर्म को, ये बोलते हैं तमोगुण वाले, क्या करते हैं, अधर्म को धर्म मानते हैं। टेररिस्ट क्या करते हैं, गलत काम को सही मानते हैं। हम दूसरों को मार रहे हैं, ये हम धर्म का काम कर रहे हैं, दूसरों को मारना ये धर्म का काम है, ऐसे समझते हैं। ये तमोगुणी लोग हैं। तो हमको इसलिए क्या करना, अगर तमो में है हो या सतो में हो या रजो में हो, ऊपर उठना है, गुणातीत बनना है, यानी भगवान के बारे में जब भक्ति करते हैं, तो धीरे धीरे से भगवान से जुड़ जाते हैं। ठीक है ना? प्लीज, कौन है वो अनम्यूट करे हैं, मैं कितना बोलता हूँ, म्यूट कर लो। लास्ट है ये अध्याय, लास्ट है, मैं फिर बोलूंगा, बोलने वाले आपको डांटने वाला भी कोई नहीं रहता हूँ। शिल्पा अग्रवाल माता जी, म्यूट कर लो। हे पार्थ, वह निश्चित जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है, और इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रण करता है, सात्विक है। देखो माता जी, प्रभु जी, अब श्रील प्रभुपाद गए, कहाँ पे गए? अकेले गए। उनकी उनकी दृढ़ता देखो, डिटर्मिनेशन देखो कैसा था, अकेले गए। कोई यहाँ से भारत देश से मृदंग बजाने, कीर्तन बजाने, गाने के लिए अच्छे सिंगरा नहीं, पैसा नहीं था, मात्र 40 रुपये, बोलते ना, 40 रुपये ले लेके अकेले 1960 के दशक में, 1965 में चले गए, 60 65 70 साल की उम्र में। और वो डिटरमाइंड थे, नहीं मैं तो कुछ तो करूंगा, मैं करूंगा, हाँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा। हम लोग क्या करते हैं, हम पीछे हट जाते हैं, क्या बोल रहे हैं, हाँ, क्या करना है, क्या, अरे हम लोग, ठीक है, ये स्लाइड आ गया। तो ये जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ और इस प्रकार मन, जीवन, इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रण करता है, सात्विक है। लेकिन वो बोल रहे हैं, लेकिन हे अर्जुन, जिसकी धृति यानी निश्चय से
मनुष्य धर्म अर्थ काम के फलों में लिप्त है। देखो जब श्रील प्रभुपाद के क्या था, उनको मेरे को पैसे वाला बनना, सोचे वो इतने मंदिरों के मालिक बन गए। अगर पूरे मंदिर श्रील प्रभुपाद के नाम पे, अगर पर्सनल नाम पे रख लिए, उनके उतना करोड़पति कोई भी नहीं रहते थे, क्योंकि उतना पैसा आ गया था जब। लेकिन वो बोले नहीं, ये कृष्ण का प्रॉपर्टी है, कृष्ण को छोड़ के जाना है, ये मेरा कुछ भी नहीं है। तो ये हमको समझना चाहिए कि जो व्यक्ति धृत है, जिसका निश्चय ऐसा रहता है रजोगुण में, वो क्या करता, मैं ये कर रहा हूं, मेरे को पैसा कमाना, मेरे लिए, मेरे लिए मैं इतनी मेहनत करूंगा, खून पसीना एक कर दूंगा, सुबह 5 बजे जाऊंगा और रात के 10-11 बजे तक मेहनत करूंगा। तो ये क्या है, रजोगुणी है। और जिसकी द्वितीय स्वप्न भय शोक विषाद, वो तमोगुण वाला क्या करता है, सोते सोते स्वप्न देखता है, सोते सोते वो राजा बन गया, सोते सोते शादी कर लिया, अच्छे से सुंदर सी रानियां है उसके पास में, सोते सोते, यानी डे ड्रीमर जिसे हम लोग बोलते हैं, वो लोग इसमें आते हैं। ये लोगों का क्या रहता है, वो डर शोक विषाद, इसलिए वो दारू पीते हैं, क्योंकि वो लोग ड्रग्स लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को एक उनको जीवन में कुछ रस नहीं लगता है, इसलिए वो सब एडिक्ट हो जाते हैं। अब बढ़ेंगे अपन। सुखम त्वम इदिनम त्रिविधम शृणु में भरतार्षभा। अब मुझसे 3 प्रकार के सुख के बारे में जानो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है, जिसके द्वारा कभी कभी दुख का अंत हो जाता है। तो सुख, लोगों को सतोगुण में सुख कैसा लगता है, रजोगुण में, दे बोल रहे हैं, ये हाँ हमारे लिए बहुत अच्छा श्लोका है। यद यद अग्रे विषम इव परिणामे मृतोपमान तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसाद जम। भगवान बोल रहे हैं कि जो प्रारंभ में कैसा लगता है, विष, लेकिन अंत में अमृत के समान है, जो मनुष्यों में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वो सुख सात्विक कहलाता है। हम लोग कल डिस्कस करें, करेले का जूस, नीम का जूस का प्रभु बेकार है, लेकिन पेट को, सेहत को बहुत अच्छा है, रोगों को लड़ने के लिए शक्ति देता है। आजकल ये कोरोना आ गया, हम लोग सब काढ़ा पी रहे थे, क्यों, पहले सब लोग घर में पहले काढ़ा बनाते थे, पहले नींबू पानी पीते थे। नींबू का भी, हमारे शरीर को नींबू भी चाहिए, हमारे शरीर को कड़वा भी चाहिए, हमारे शरीर को मीठा भी चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो गया, बचपन से चॉकलेट्स, बचपन से टूथपेस्ट भी मीठा। पहले दंत मंजन ने तो दूसरा रहता था, वो मीठा नहीं रहता था। हर चीज में हम लोग शक्कर को ला दिए, जीवन भर में हम लोग शुगर के पेशेंट बन गए, डायबिटिक के पेशेंट बन गए, क्योंकि हमारे बॉडी को हर चीज चाहिए। आंवले का भी टेस्ट क्या रहता है, वो टेस्ट हमारे शरीर को चाहिए। आजकल बच्चों को आंवला क्या है नहीं मालूम, ऐसा हो गया। तो एक्चुअली वो बोल रहे हैं, जीभ का टेस्ट नहीं देखना, पहले क्या देखना है, जीभ को वो विष लगता है, लेकिन पेट को अमृत लगता है। वैसे ही जीवन में सुबह जल्दी उठना, आप लोगों को प्रभु जी आपकी क्लास सुबह क्यों लेते, आप शाम में लो, डायरेक्ट मैसेज करते हैं, क्योंकि हम लोग सुबह में उठना कठिन है प्रभु जी। तो ये क्या होता है, वो छोड़ के चले जाते हैं। वास्तविकता में जब सुबह में उठते हैं, देखो पंछियां जाग रहे हैं, जब सुबह में उठ के नहा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भगवत गीता सुन रहे हैं, भागवतम सुन रहे हैं, तो ये समझना चाहिए हमारे में। आप खुद देखो, आप परेशानियां वही थे 2022 में, 21 में वही स्थिति थी, लेकिन आज उसको देखने का नजरिया बदल गया। अब आपका जीवन में क्या हो गया है, यस, धीरे धीरे से मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, आत्म साक्षात्कार की ओर जा रहे, आत्म साक्षात्कार की ओर जा रहे। तो करना क्या है, वो सही काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो रजोगुण में रहता है क्या करता है, जो सुख इंद्रियों के द्वारा विषयों के संसर्ग में उत्पन्न होता है, प्रारंभ में अमृत लगता है, अंत में विषतुल्य। मैं मीठा खाते जा रहा हूँ, प्रारंभ में मेरे जीभ को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में मेरा शरीर चला जाएगा, शुगर ने तो कोई और बीमारी में। मेरे तिल के आइटम, जंक फूड, बाहर का आइटम मैं खा रहा हूँ बेकरी में, वो मेरे को मुंह को अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में बीमारी में डालेगा। डॉक्टर बोलेगा तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, इसलिए हार्ट अटैक आया, मालूम, ये होता है। अब
यद, हाँ, जो इसको ये नहीं मालूम, आत्म साक्षात्कार भी नहीं मालूम, वो अंधा है, तो शरीर नहीं है आत्मा है, वो समझता नहीं। वो प्रारंभ से लेकर अंत में मोह कारक है, जो निद्रा आलस्य मोह से उत्पन्न होता है। क्या खाता क्यों खाता नहीं मालूम, क्यों सो रहा नहीं मालूम, हाँ, रात के 12-1 बजे तक जागते रहता सेल पकड़ के, क्यों जाग रहा नहीं मालूम। किसके की रील्स रहता है वो देखते जाता है, हाँ, क्यों नहीं मालूम। ना तद, और क्या बोल रहे हैं, प्रवृत्तिम च दिवि द्वेषु व पुनः, इस लोक में, स्वर्ग लोक में या देवता के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त है। भगवान बोले इवन देवताएं भी। अरे प्रभु जी, देवताएं कैसा? अब देखो, देवताएं स्वर्ग में रहना अच्छा, उन लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि स्वर्ग में अप्सराएं नाचती है। हाँ, स्वर्ग में क्या होता है, हाँ, सोमरस होता है। हमारे पास में दारू बोलते हैं, कोको कोला, थम्स अप, माजा, ये सब हमारे लिए सजा है, लेकिन वहां पे क्या रहता है, सोमरस। तो वो लोग भी अच्छा सा, तो वो लोग रजोगुण में हैं। देवता भी छूटे नहीं, देवता भी रजोगुण में हैं। इसलिए यहाँ पे बताते हैं, भगवान बोल रहे मनुष्यों में भी गुणों, हर कोई ना कोई एक गुणों में बंधा हुआ है, हमको गुणातीत बनना है। देखो माता जी, प्रभु जी, एक कहानी बोलता हूँ। एक आश्रम था, आश्रम के सामने तोते और ऐसी पंछियां रहते थे। तो वो आश्रम में एक गुरुजी थे। गुरुजी क्या करे, देखो तोते, मैं तुमको एक बता रहा हूँ, सीखो, याद रखो मैं जो बोल रहा हूँ। तो वो लोग सुनने लगे, बोलो बोलो बोलो। देखो, मैं तुमको डेली दाना डाल रहा हूँ ना, वैसा कभी कभी मैं नहीं रहता हूँ, कभी कभी मैं यहाँ वहां बाहर जाता हूँ। तो क्या होता मालूम, हाँ हाँ, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, हाँ, तो और फिर जाल बिछाएगा, तुम जाल में फंसना नहीं, उड़ जाना। तो तोते बोलते ओके, हम समझ गए। क्या समझे? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, हाँ, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं, उड़ जाना। सब लोग ऐसी रटन लगाते। हाँ, शिकारी आएगा, दाना। सचमुच में एक दिन क्या हो गया, वो अपने सन्यासी जो भी थे वहां, वो गुरुकुल में वो चले गए, बाहर चले गए। जैसे ही बाहर चले गए, सचमुच में शिकारी आ गया। शिकारी आके बोलने लगा, शिकारी आएगा, हाँ, शिकारी आया। अब शिकारी दाना डाला, हाँ, तो अब ये तोते गा रहे हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, हाँ, जाल बिछाएगा। सचमुच में वो जाल बिछाया, हाँ, जाल बिछाया, हाँ, जाल बिछाएगा, हमको जाल में फंसना नहीं, उड़ जाना। पूरे तोते, पंछियां पूरे शिकारी के जाल में फंस गए। अब ये कहानी से हमको सीख क्या मिलती है? हम सिर्फ मैं तो आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं यहाँ रहने वाला नहीं हूँ, मैं वहां का हूँ, ये बोलना नहीं। उसके साथ साथ हम आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ बोल लेते बैठेंगे, एक दिन मृत्यु क्या आएंगी, जाल बिछाएगी। मृत्यु बयाल बिछाएगी, हमको लेके चले जाएगी। हमको बोलना नहीं, मृत्यु के जाल से निकलना है। कैसा निकलेंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना हम ध्यान पूर्वक भगवान से जुड़ जाते हैं, कथाओं में हम जब सुनते हैं तो हमको आनंद आना चाहिए, रोना चाहिए, मेरा ठाकुर मेरे को क्यों छोड़ के गया। कभी कभी बच्चा रोता है, हम स्कूल को नहीं जाना चाहता है वो, हाँ, रोता है क्यों? माँ बाप से अच्छा खेल रहा था मैं, हाँ, स्कूल के छुट्टियां आए थे, खेल रहा था, मेरे को माँ बाप से दूर रहना पड़ रहा। आज हम रो रहे नहीं, हमारा पिता दूर है, क्योंकि हमको पिता के बारे में नहीं मालूम था। सिर्फ हम यही गाना गा रहे हैं, क्या? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, नहीं गाना। सब लोग यही गाना गाते हैं। थोड़े मेरे कथाएं ना कभी कभी चुपते हैं, तो आप फील नहीं करना, लेवल 2 आना जरूर। प्रभु जी ऐसा बोलते हैं, तकलीफ देते हैं, नहीं समझना, तो ये प्रैक्टिकल कथाएं हैं। चलो, ब्रह्म क्षत्रिय, ठीक है, जल्दी जल्दी मैं पढ़ लेता हूं। अब यहाँ से क्या है, ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य, इन लोगों के भी गुणों के बारे में बताया गया ना। ये लास्ट श्लोका है जो सतो और रजो में बताता है। और ये ब्राह्मणों को, क्षत्रिय के गुण क्या है? मैं ब्राह्मण हूं, अरे बेटा तेरे में ये क्वालिटी है क्या? तू ब्राह्मण है, तेरे में ये है क्या, तू देख ले, ऐसा हम पूछना चाहिए। क्योंकि भगवान बोले, मैंने बोल रहा हूँ, समो दमस तपस शौचम शांतिर अर्जवम एवचा। एक ब्राह्मण में क्या क्या रहना? शांति प्रियता रहना,
उसका कंट्रोल में रहना, आत्म संयम रहना, तपस्या करना उसको अच्छा लगता है, पवित्रता रहना अच्छा लगता है, सहिष्णुता सहन करता है, सत्य निष्ठा रहता है, ज्ञान में वो हमेशा ज्ञान के बारे में तड़पता है, इसमें क्या है, उसमें क्या है, वो क्या है, फिर उसको अप्लाई कैसा करना, विज्ञान बोलते हैं उसको, वो तड़पता है, और धार्मिकता में उसकी रुचि रहती है। ये गुण बाई बर्थ आ जाते हैं, किसमें? ब्राह्मण में। जो ब्राह्मण के गुणों से लेके जन्म लेता है, ये बाई बर्थ आ जाते हैं। उसको अगर लड़ो या आर्मी में चले जाओ, वो नहीं लड़ेगा। कोई कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है, उसको शास्त्रों में रुचि नहीं रहती है, मैं आर्मी में जाऊंगा, मैं देश के लिए लड़ूंगा, तो वह क्षत्रिय गुणों वाला है। तो क्षत्रियों का क्या है? शौर्यम, तेजो, धृति, दक्षम, युद्धे चापि अपार। वो बोल रहे हैं वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता, नेतृत्व। कोई कोई क्या करता है? नेता बनने में इंटरेस्टेड रहता है। क्यों? वो क्षत्रिय गुणों से जन्म लिया। कोई कोई किसी को अन्याय हो रहा, अच्छा, एक लड़की को देखो, कभी कभी हम लोग मार्केट में देखो, एक लड़की को एक बंदा क्या करता है, चाकू लेके कुछ 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 बोल के ऐसा चुबाता है। कितने बार? एक बार नहीं, दो बार नहीं, 30 बार, 40 बार। आसपास के लोग क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। वहां पे अपने नाम के बाजू एक एक का नाम, कोई क्षत्रिय परिवार बोलता है, कोई ब्राह्मण परिवार बोलता है, कोई वैश्य बोलता है, कोई शूद्र परिवार से बोलता है, लेकिन सब देख रहे हैं। कोई एक पत्थर भी लेके जो मार रहा है उसको मारते नहीं। कोई उसको 8-10 लोग मिलके उसको खत्म कर दिए या मार दिए, तो फिर कोई ऐसा हिम्मत करेगा क्या? नहीं करते। दिस इज व्हाट क्षत्रिय का लक्षण नहीं है। तुम्हारे नामों में खाली क्षत्रिय है, हम नाम से नहीं। क्षत्रिय कैसा रहता है? वीर रहता है। वो सहन नहीं कर सकता किसी भी अबला नारी पे हो, या किसी भी बल जो जिसके पास में निर्बल है, उसको अगर अटैक हो रहा है तो वो तड़पता है बचाने के लिए, भले ही वो प्राणी जीव कुत्ता भी क्यों ना हो। तो ये हमको समझना चाहिए, वो लड़ता है। उसके पास में जो शक्ति है, खाली फोटोआ बताने, देखो मेरे डोले शोले, नहीं, लोगों के लिए वो तड़पता है। युद्ध में मरने के लिए रेडी होता है, पीठ दिखा के भागता नहीं क्षत्रिय। ये हमको समझना चाहिए। क्षत्रिय का वो स्वाभाविक गुण है। कैसा होता मैं देख लूंगा, वो आगे बढ़ता है। वह नहीं दरवाजा बन के बैठने वाला नाम का क्षत्रिय है। और जो कृषि करना, गोरक्षा, तथा व्यापार वैश्यों का स्वाभाविक है। देखो एग्रीकल्चर, जो हम लोग खेती करना और गायों की रक्षा करना और यो व्यापार करना, उसको अच्छा लगता है। किसको? वैश्य के स्वभाव वाले को। वैश्य जन्म से नहीं है, शूद्र जन्म से नहीं है, ब्राह्मण और क्षत्रिय जन्म से नहीं है। हम देख लिए गुणा, ये सब गुणा आना चाहिए। शूद्र कौन है? ये जितने भी लोग एक श्रम करता है, काम कर रहा हूँ पैसे ले रहा हूँ, काम कर रहा हूँ पैसे ले रहा हूँ। कभी कभी डॉक्टर भी शूद्र बनता क्या? हाँ, वो काम कर रहा है, सैलरी ले रहा है। इंजीनियर शूद्र बनता क्या? हाँ, वो जॉब कर रहा है, पैसे ले रहा है। वैसे ही जन्मना जायते शूद्रा, हमको अच्छा सा पुराण में बताया गया, स्कंद पुराण में। सब लोग हम लोग क्या है? जन्म से शूद्र है, ये मैं ऑलरेडी बता दिया 4थे अध्याय में। तो इसलिए शूद्र का काम क्या है? दूसरों को, अगर आप देखो कभी कभी आपकी ऑफिस में कोई एक शूद्र की भावना वाला ज्वाइन कर लिया दुकान में, आपकी दुकान में, उसको बोले भाई तू जरा क्या कर, तेरे हाथ के नीचे 4-5 लोगों को दे देता हूं, तू बॉस बन जा, तू बॉस बन के इनसे काम ले। उसको लेना नहीं आता। वो बोलता प्रभु आप ही काम लो, मैं आप जो काम बोले मैं करने के लिए तैयार हूं, ये बॉस बनना मेरे से नहीं होना है, तो मेरे को सैलरी नहीं चाहिए। क्यों? उसको क्लर्क बनना अच्छा है, मैनेजर का पोजीशन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें शूद्र की भावना है। टीचर बनो, अच्छा बनता, अगर उसको वही हेडमास्टर बना दो या तो प्रिंसिपल बनाओ, उसको समझ में नहीं आता। कभी कभी क्रिकेट में भी देखो, जिसको कैप्टनशिप नहीं आती है, सडनली उसको कैप्टनशिप लीडर बना दिए, तो उसमें वो क्वालिटी नहीं है। वो क्वालिटी नहीं है तो वो क्या कर सकता है? मैनेज नहीं कर पाता है, हार जाती है टीम। क्योंकि उसकी क्वालिटी क्या है? शूद्र की है। मेरा जो कैप्टन बोलेगा मैं वही करूंगा। दिस इज व्हाट, ये जनरल हर किसी में लागू होता है। जो भगवत गीता के श्लोका हैं, हम लोग वो करना अब ठीक है, हम लोग फिर टाइम कितना है? 3 मिनट है 7 बजने के लिए। बाप रे बाप, 15 श्लोका हैं। और यथा प्रवृत्तिम भूतानाम, मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा यहाँ से।
जो सभी प्राणियों का उद्गम है, सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपने कर्म करते हुए पूर्णतः प्राप्त प्राप्त कर सकता है। पूर्णतः यानी भगवान को प्राप्त कर सकता है। बेटा तू शूद्र रहे, तू वैश्य रहे, तू क्षत्रिय भी हो, ब्राह्मण भी हो, लेकिन तू क्या करना है, जो सर्वव्यापी है, वो भगवान की जो भगवान कौन है वो जो जान लिया, जो तत्वदर्शी पुरुष के पास में गया, मेरे को बोलो गया भगवान कौन है, तो गुरु के माध्यम से जो जान गया, वो भगवत धाम भगवान को प्राप्त कर सकता है, चाहे कोई भी वर्ण में रहो। भगवान बोल रहे हैं, अब भगवान बोल रहे हैं कभी कभी हम क्या देखते हैं, अच्छा शिप्रा अग्रवाल माता जी टीचर बन के पैसा कमा रही है, जबकि मैं ब्यूटिशियन हूँ, मैं ब्यूटिशियन का काम कर रही हूँ। अच्छा टीचर में बहुत पैसा है तो मैं क्या करूंगी, टीचर जॉब कर लूंगी। ऐसा होता है, दूसरों को देख के हम लोग क्या करते हैं, कौवा चला हंस की चाल। लेकिन भगवान बोल रहे हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितः स्वभाव नियतम कर्मा। हमारे स्वभाव के हिसाब से अपने वृत्तिपरक कर्म कार्य को करना चाहिए, चाहे वो कितना भी त्रुटिपूर्वक ढंग से किया न जाए। अन्य किसी कार्य को स्वीकार करना या इच्छा अच्छा प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप नहीं से प्रभावित नहीं होता। हमारा जो कार्य है वो करना अच्छा चाहिए। दूसरों को अरे भाई वो फिल्म एक्टर बन गई, मैं भी बन जाऊंगी, गिर जाएंगे हम। हमारा स्वभाव क्या है, देखो हमारा स्वभाव लड़ने का है और हम कर रहे हैं, मैं नहीं लड़ूंगा, बिजनेस करूंगा। बिजनेस में भी गिराक से लड़ता है, क्योंकि वो स्वभाव से क्या है, क्षत्रिय है। गिराक अगर थोड़ा सा भी कुछ बोला उसको मारेगा। कभी कभी जॉब में भी जो क्षत्रिय के गुण वाला अगर जॉब कर रहा है, शूद्र का काम कर रहा है, शूद्र यानी जॉब कर रहा है, वो बॉस से लड़ेगा, उसको बर्दाश्त नहीं होगा। तू कैसा बोला देख लेंगे, दिस इज व्हाट, उसमें भावना आती है, क्योंकि उसकी बुद्धि वैसी है। हमको समझना चाहिए हमारे आसपास में लोग किस भावना के लोग हैं, सतोगुण में है, रजोगुण में है, इनकी बुद्धि कहां तक है। लेकिन ये सबको हमको लेके जाना चाहिए भगवत धाम। ठीक है, अब ये लेवल पे आने के लिए बहुत कठिन मेहनत करना पड़ता। ये क्या बोल रहे हैं भगवान, देखो, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति सर्वभूतेषु मद्भक्तम लभते परम। ब्यूटीफुल श्लोका है हमारे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए। क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, जो वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है, पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है, और ना तो कभी शोक करता है, ना कभी किसी वस्तु की कामना करता है। मेरे को ये नहीं मिला, आज मैं रो रहा हूं, मेरे पास में ये जो था चला गया, आज मेरे पास में ये आ गया। नहीं, देखो समुद्र में क्या आती है, कई प्रकार के नदियां मिलती है। समुद्र खुशी के मारे बड़ा थोड़ी हो जाता है, नहीं। क्या समुद्र कम हो जाता है क्या, नहीं। तो वो विचलित नहीं होता। समुद्र जब नीचे जाओ, ऊपर से नहीं, नीचे जब गहराइयों में समुद्र में जाओ, क्या रहता है, शांत रहता है। बड़े ही ऊपर कैसा दिखता है समुद्र, अरे बहुत सारे बड़े बड़े लहरें हैं, लेकिन नीचे कैसा रहता है, शांत। वैसे ही वो व्यक्ति ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा के लेवल पे जो जाता है, वो क्या बन जाता है, शांत। उसके लाइफ में परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां आए तो भी वो मुस्कुराता, हाँ ठीक है, ओके, अगर खुशी आई तो भी ठीक है, रोता नहीं। दिस इज व्हाट, जो दोनों को भी समान भाव से लेता है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा है। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, और फाइनली क्या बोल रहे हैं लास्ट में, वह प्रत्येक जीव को समभाव रखता है, सबको समान देखता है, उसी अवस्था में मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। जब हम अंदर से शांत है, समुद्र के वैसा अंदर से शांत है, तो माला जप पाएंगे, हरि का नाम ले पाएंगे हम। नहीं तो ऊपर से पूरा डिस्टर्ब्ड है, रो रहे हैं, नहीं तो खुशी मना रहे हैं, देन हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अंदर से खुश नहीं है ना हम, वैसा। ठीक है, अब भगवान बोल रहे हैं भक्त्यामाम अभिजानाति यावान यश्चस्मि तत्वतः। ये भगवान तत्वतः वर्ड भगवत गीता में कई बार यूज करे। केवल भक्ति से ही, इतना ब्यूटीफुल श्लोक है। देखो भगवान के पास में कैसा जाना जा सकता, भगवत धाम कैसा जा सकते, भगवान को कैसा जान सकते। व्हाट्सएप में कई लोग छोड़ के चले जा रहे, क्यों छोड़ के जा रहे, उनको भगवान को जानना नहीं है।
केवल भक्ति ही है। अब आप जो कर रहे हैं भक्ति कर रहे हैं, क्लास में रोज जुड़ रहे हैं, केवल भक्ति से भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति में पूर्ण मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वैकुंठ जगत में कहाँ पे जाता है? वैकुंठ जगत में प्राप्त करता है। हमको कहाँ जाना है? भगवत धाम जाना है। तो हमको भगवान की भक्ति करना है। तो भगवान की लीलाएं सुनना भी भक्ति है, भगवान के बारे में बोलना भी भक्ति है, भगवान का नाम लेना भी भक्ति है, भगवान के लिए प्रसाद बनाना भी भक्ति है। तो इसलिए माता जी प्रभु जी जुड़ जाइए भक्ति में, क्योंकि भगवान बोल रहे वैकुंठ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं जो लोग भक्ति करते हैं। मच्चिता सर्व दुर्गानी मत प्रसाद तरिष्यसि अतः चेत्वम अहंकारम। वो बोल रहे हैं यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे, अगर तुम मेरे को आई लव यू बोलोगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। भगवान बोल रहे बेटा तू अगर जब मेरे से भावना में आ जाएगा, ये मेरा ठाकुर मेरा पिता है, मेरा पति है, मेरी माता है, मेरा सब कुछ है, मेरा ठाकुर जैसा तू मेरे बंधन में आ जाएगा, एक कदम तू डालेगा, मैं मेरा वैकुंठ छोड़ के तेरे को लेके जाने के लिए मैं आऊंगा। भगवान बोल रहे तेरे को मैं लेके जाने के लिए आऊंगा, तू डर मत। लेकिन यदि तू मेरे पास में नहीं आया, अतः चेत्वम अहंकारम, वो बोल रहे हैं अगर तू नहीं आया, मैं कौन हूँ? चार्टर्ड अकाउंटेंट IAS ऑफिसर हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मेरे पास में भक्ति नहीं करा, देन सिर्फ तेरे कर्म करता गया, अहंकार बस ऐसी चेतना में कर्म नहीं करेगा और मेरी बात नहीं सुनेगा, तो तू विनष्ट हो जाएगा। भगवान ने जैसा बच्चों को बोलते बेटा तू स्कूल में जा पढ़ ले, नहीं तो चपरासी बनेगा, पढ़े लिखा तो ऑफिसर बनेगा, वैसा भगवान हमको भी दो बोल रहे हैं। अगर तू अच्छा सा भक्ति कर लिया, मेरे धाम में आता, नहीं मेरे से भावना में नहीं रहेगा, तो तेरा विनाश। विनाश का मतलब क्या? फिर ये 84 लाख योनियों में गिरते, फिर जरा जन्म मृत्यु व्याधि में भी गिरते, किसको पता मल के कीड़े में बन सकते नेक्स्ट जन्म, काकरोच बन सकते हैं जो गटर में रहता है, सुअर बन सकते हैं, पता नहीं हमको। यही हमारा पतन है, ये पतन नहीं होना चाहिए। तो क्या करना है? भगवान से जुड़ना है, भगवान से संबंध जोड़ना है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषि अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मायान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। वो भगवान बोल रहे हैं परमेश्वर कहाँ पे है? सबके हृदय में है, आप डरो मत, आपके हृदय में भी परमेश्वर है। भौतिक शक्ति से निर्माण यंत्र के में सवार की भांति, जैसा घोड़े वो रथ कैसा चलता है? सारथी लेके जाता है। कार कैसा चलती है? ड्राइवर उसको भी चाहिए, प्लेन को भी एक चीज चाहिए। तो वैसा भगवान बोल रहे हैं तेरे हृदय में मैं बैठा हुआ हूँ, तेरे हृदय में बैठा हुआ हूँ, तेरे को सब जगह पे घुमाने के लिए एक्चुअली क्या कर रहा हूँ? समस्त जीवों को अपनी माया से भ्रमा रहे हैं। तो हमको ये माया में भ्रम में पड़ना नहीं, सिर्फ क्या करना है? भगवत धाम कैसा जाना है वही विचार करना है। शरणम गच्छ सर्वभावेना भारता तत्प्रसादत परम संतिम। वो बोल रहे हैं हे सब प्रकार के उसी की शरण में जाओ। किसकी शरण में जाओ? जो तुमको भगवत धाम लेके जाता है उसकी शरण में जाओ। तुमको पैसा देता, प्रॉपर्टी देता, सोना देता, हीरा देता, उसकी शरण में मत जाओ। भगवान थोड़ी देर पहले क्या बोले? जो नित्य, अभी भी वही बोल रहे कि तुम उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुमको क्या मिलती? शांति। आज सबको शांति नहीं है, और तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करेगा। परम नित्य धाम को जो लेके जाएगा, नित्य यानी हमेशा रहने वाले धाम में जाओ ना, ठीक है ना? ठीक है, और आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी जा रहे हैं अपन। अब भगवान बोले पूरी भगवत गीता मैं बोल दिया बेटा तेरे को, अब तेरी मर्जी। हम भी बच्चों को समझाते बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, वो बच्चा नहीं पढ़ता, तेरी मर्जी देख बेटा। वैसा भगवान बोल रहे हैं इस प्रकार मैंने तुमसे ये गुरुयतर कॉन्फिडेंशियल ज्ञान सुनाया, अब इसमें पूरा कंसंट्रेशन करो, तुमको जो चाहे वो करो। भगवान फोर्स नहीं करे। हम हमारे बच्चों को मार के तू यही कर बोलते हैं, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं। हमको बोल रहे हैं तुम्हारी मर्जी। इतने ज्ञान दिया, कर्म योग बताया, भक्ति योग बताया, सब बताया मैं तुम लोगों को। ज्ञान के माध्यम से मेरे को जुड़ो बोला, अब तुम्हारी मर्जी मेरे से जुड़ना है या नहीं जुड़ना है, कट्टी बोलना है, तुम्हारी मर्जी। सर्व गुह्यतमम भूया शृणु में। अब भगवान बोल रहे हैं अब लास्ट के जो श्लोका बोलने वाला हूं, ये अब तक जो बोला उससे बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्या है वो श्लोका? चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश को देने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। मेरा आदेश, भगवान का आदेश क्या है वो सुनो। भगवान क्या बोल रहे हैं? सब लोग अनम्यूट करो, माता जी, प्रभु जी, सब लोग अनम्यूट करो। मैं पढ़ता हूं एक बार, आप लोग एक बार वही पढ़ो। मन्मना भव मद्भक्तो मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। ये जो है कितना अच्छा श्लोका भगवान बोल रहे हैं। ये 2 श्लोका पूरी भगवत गीता का टर्निंग पॉइंट है। ये बोलना है भगवान का डायरेक्ट संदेश हमको। आदेश क्या है? भगवान बोल रहे सदैव मेरा चिंतन करो। एक, फिर चिंतन कैसा? कंस भी चिंता करता था, हमेशा कैसा मारूं कृष्ण को, भगवान से ईर्ष्या करके चिंता करता था। भगवान बोल रहे हैं वैसा चिंतन मत करो। भगवान बोल रहे मेरे भक्त बनो, भक्त बन के मेरा चिंतन करो। फिर बोल रहे भगवान मेरी भक्ति खाली भक्ति, हाँ मैं तो कन्हैया तो मारो है, कन्हैया मेरा ही है, ऐसा मत बोलो। मेरे लिए पूजा करो, मेरी सेवा भी करो, तब हाँ, और नमस्कार भी करना है तो मेरे को करो। 4 चीज बोले देखो भगवान। सदैव मेरा चिंतन करो, भक्त बनो, पूजा करो, नमस्कार करो। ऐसा करने से भगवान बोल रहे मैं वचन दे रहा हूं, तुम निश्चित रूप से मेरे पास आ जाओगे बेटा। तुम लोग आज तड़प रहे हो, पत्नी बनके, पति बनके, बेटा बनके, माँ बनके, बीमारियों से, आसपास के लोगों से तड़प रहे हो, रो रहे हो। मेरे पास में आ जाओगे, एक बार मेरे बन जाओ ना। ये एक जन्म मेरे को दे दो। कई जन्म तुम यही करते गए, व्हाट, कैसा मैं अच्छा जीना, कैसा खाना, कैसा सोना, बच्चों को कैसा जन्म देना, यही चलता गया। ये एक जन्म मेरे बन के तो देखो ना। ये मेरा भगवान का वचन मिथ्या नहीं है माता जी, प्रभु जी। भगवान जब वचन देते हैं, देखो 5 लोगों को वचन दिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा, 5 लोगों को युद्ध में जिता दिए, 100 लोगों को मरवा दिए, 100 लोगों के पत्नियां को विधवा कर दिए, क्योंकि वचन दिए थे। तो भगवान का वचन मिथ्या नहीं है। भगवान भक्तों पे जब संकट आता है वो भी तड़पते हैं बचाने के लिए। देखो नरसिंह भगवान बनके प्रहलाद महाराज को बचाने आ गए। तो ये भगवान का वचन है, एक बार भक्ति कर लो। एक बार जीवन में भगवान बोल रहे हैं चिंतन करना है तो मेरा ही करो। इसलिए चिंतन छोड़ो, चिंता छोड़ो, चिंतन जोड़ो। अगर चिंता करोगे चिता में मिल जाओगे। ये सब लेवल 1 में बोलता हूँ, कि लेवल 2 में कुछ भी नहीं बोलता हूँ। सीधा सीधा स्ट्रेट अवे रहते हैं वो। लेवल 2 बहुत टफ जाता है थोड़े लोगों के लिए। चलो सब लोग अनम्यूट करो। अब भगवान का नेक्स्ट संदेश क्या है, आदेश क्या है? सर्वधर्मन परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अमेकं शरणं व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कितना अच्छा श्लोका है। भगवान बोल रहे हैं बेटा तू सब धर्मों को छोड़ दे। तू तेरे मन में कई कल्पना कर रहा, ये सही है, ये सही है, मनोधर्म, मन में जो धर्म आया वही अपना लिया। भारत देश में यही होता है। हाँ, वो कोई तो भी यूट्यूब में कोई लेक्चर देता है, उसका कोई गुरु है क्या, कोई शास्त्रों के माध्यम से बोल रहा क्या? नहीं, हम उसको क्या करते हैं, हम तो उसको फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो कर रहे पता नहीं, नहीं वो अच्छा बोलता है ना प्रभु, उसके सब्सक्राइबर ज्यादा है, हाँ, तो हम उसको फॉलो कर रहे। तो ऐसे लोगों को फॉलो करना बंद कर दो। सर्वधर्मन परित्यज्य, मेरे अकेले के शरण में आ जाओ। और क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं तुमको क्या करता हूं, ऑफर दे रहे भगवान, तुम्हारे जितने भी पाप है मैं 0 कर दूंगा। 0 करके क्या करूंगा, सीधा तुमको लेके जाऊंगा कहां पे, मेरे धाम में। मोक्षयिष्यामि मां शुचः, डरो मत मां शुचः, तुम डरो मत, मैं तुमको मोक्ष मेरे धाम में लेके जाऊंगा बेटा। ये भगवान का फाइनल कंक्लूजन है। एंड और आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, हमारे भक्ति के लिए। इसलिए क्या करना चाहिए, जो अनुकूल परिस्थितियां हैं उसको देखना। अगर मैं कर्म कर रहा हूँ, अनुकूल संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम, तो हमको भी क्या करना है, क्या मेरे लिए ये भक्ति के लिए उचित है, क्या अनुचित है, वो हमको समझना चाहिए। जब हम लोग समझते हैं ये मेरे प्रतिकूल आ रहा है भक्ति के लिए, देन उसको छोड़ना चाहिए। ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं हरि चरण दुख हरण। थोड़ा जल्दी जाएंगे हम लोग को, कृष्णा बुक अभी स्टार्ट करना है। अब लास्ट में भगवान कंक्लूजन दे रहे हैं, जो व्यक्ति भक्तों का यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। जैसे कि मेरे शिक्षा गुरु नामनिश्चित दास प्रभु जी, वो क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से सबको ये प्रचार कर रहे हैं। और भगवत गीता वो क्या करते हैं, अगर हम लोग जब पैसे जो भी हमारा दान है मंदिर को देते हैं, तो वो क्या करते हैं, भगवत गीता कई स्कूलों में कई कॉलेजों में जाके क्या करते हैं, बांटते हैं। तो वो भगवान बोल रहे हैं मेरा भक्ति को प्राप्त करेगा। और संसार में जो प्रचार करता है, अगर आप लोग किसी को बोल रहे हैं भगवत गीता में ऐसा बताया गया, अगर आप बोल रहे हैं ये इस्कॉन की संस्था में जुड़ जाओ और सुबह की क्लास में जुड़ो, या 3 बजे की क्लास में जुड़ो, शाम की 7 बजे की 9 बजे की क्लास में जुड़ो, तो आप जो बोल रहे हैं प्रचार कर रहे हैं। मामूली हमारा ग्रुप का मैसेज आएगा अब आपको कि नया बैच स्टार्ट हो रहा जुलाई में, वो आपके ग्रुपों में आप फॉरवर्ड करना। तो पता नहीं कौन स्ट्रेस में डिप्रेशन में सुसाइड करना चाह रहा, कभी कभी बातों से बदल जाता, उसकी जीवन में वो भक्ति करना आरंभ करता। सचमुच में माता जी, अगर किसी को सुसाइड करना है, दुनिया के लिए सुसाइड कर लिए समझो, सीधा हमारे मंदिर में आ जाओ, मंदिर में कई सेवाएं हैं, कन्हैया के बन जाओ, कन्हैया के लिए सेवा करो। सुसाइड करके क्या मिलता, दुनिया के लिए सुसाइड कर लो, लेकिन हमारे लिए मंदिर में भगवान के लिए सेवा कर लो। सेवा का बार बार चांस नहीं मिलता हमको। हाँ, नहीं मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ वैसा नहीं, लेकिन हमको करना क्या चाहिए, हमारा कर्म को लड़ना चाहिए, परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसा मान रहे हैं तो आ जाओ, मंदिर बुला रही है आपको, कोई भी सेवा है, मैं भी आपको, मेरे से कांटेक्ट करो, आपको प्रभु जी हम ऑनलाइन सेवा करना चाह रहे, करो, एडमिन बनो, कोहोस्ट बनो, अलग अलग सेवाएं हैं, करो, कुछ ना कुछ करो भगवान के लिए। हाँ, जुड़ जाओ। इस संसार में उनकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक नहीं है, सैनिक ये नहीं है कि सिर्फ सेना, भारत देश जीत गया, कैसा जीता, ओनली वो गन लेके चला है, नहीं। अरे भैया, उन लोगों को, गन लेने वालों को खाना कौन बनाए, बुलेट्स कौन बनाए, गन कौन लेके आके उनको देता था, ये सब लोग करे तो वो भारत देश जीत रहा है। वैसे ही हमको समझना चाहिए, प्रचार यानी ओनली अब मैं आपके सामने आ रहा हूँ, सामने दिख के मैं आपको बोल रहा हूँ, ये प्रचार नहीं है, ये एक ही करेक्ट है, नहीं। पीछे भी जो, अगर आपको पीपीटी बनाना आता, कुछ भी ब्रोचर बनाना आता है, सब में जुड़ जाइए आप। और क्या बोल रहे हैं, मैं घोषित करता हूँ, ये हमारा जो पवित्र संवाद का, हाँ हाँ, अब डेली आप क्या कर रहे, सुन रहे, कृष्णा बुक में सुन रहे, हर चीज सुन रहे, सुन रहे, सुन रहे, वो सुन रहे है नहीं। भगवत गीता जब सुनते हैं तो अध्ययन कर रहे हैं हम दो, भगवान क्या बोले, नहीं नहीं भगवान ये नहीं बोले, ये बोले, तो ये क्या है, हम हमारी बुद्धि से पूजा कर रहे, किसकी, भगवान की। ठीक है ना। अब भगवान बोले जो श्रद्धा समेत, अब आप लोग श्रद्धा समेत सुने ना, दो द्वेष रहित होकर सुने, हाँ, उनके समस्त पाप चले जाते हैं, शुभ लोकों को प्राप्त करते हैं जहाँ पुण्यात्मा निवास करते हैं। जो भी भगवत गीता को सुनता है, अच्छा सा सुनता है, बार बार सुनता है, सुनने मात्र से ही, भगवान से द्वेष नहीं करना। देखो, जो लोग द्वेष करते थे व्हाट्सएप छोड़ के चले गए, कृष्ण से जो द्वेष करते थे, ईर्ष्या करते थे, वो लोग छोड़ के चले गए, वो आए नहीं लौट के। लेकिन आप लोग ठहरे हुए हैं, इतने दिनों से रुके हुए हैं, इसका मतलब आप द्वेष नहीं कर रहे। सॉरी एक्सट्रीमली। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, द्वेष नहीं कर रहे हैं और श्रद्धा के साथ सुने। सुनने से क्या होता है, भगवान बोल रहे हैं पुण्य लोक, पुण्यात्माएं के लोक में जाते हैं। अब भगवान बोल रहे हैं, हे धनंजय, क्या तुमने इसे सुना, मैं भी आप लोगों को बोल रहा हूँ, चंद्रदीप प्रसाद सिंह प्रभु, आप सुने क्या, ऐसा सब लोगों को, रतन प्रभु, जितने भी लोग क्लास में हैं, सब लोग सुने क्या, हाँ, एकाग्र चित्त होकर सुना क्या, हाँ, क्या अब तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हो गया क्या। भगवान कितने अच्छे हैं, देखो मेरे बेटे, तुम लोग सुने क्या, मैं जो बोला 18 दिन तक, नहीं खाली इस कान से लिए, इस कान से निकाल दिए प्रभु जी, हम लोग ऐसा करे क्या, हाँ नहीं ना, सुने। तो यस, तो मैं भी आशा कर रहा हूँ आप सब सुने, आपका मोह भी दूर हो गया है। अब भगवान क्या को अर्जुन बोल रहा है, ये हमको अर्जुन बनना है। अर्जुन क्या बोल रहा है, नष्टमोह स्मृति मत लब्ध्वा तव प्रसादम मयुच्यता स्थितोस्मि गत संदेहा, जितने भी संदेह थे चले गए, मेरा मुंह दूर हो गया,
मैं करिष्ये वचनम तवा, अब आप जो बोलना चाह रहे मैं करने के लिए रेडी हूं। आप बोले मार दो, मैं मार दूंगा, क्योंकि मैं समझ गया मेरे जीवन में करना क्या चाहिए। सिर्फ आपकी वाणी के अनुसार आपका, आप जो बोले वो करना चाहिए, आपका अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना। हाँ, आप 16,000 108 रानियों को शादी कर लिए, मैं भी कर लूंगा, हाँ नहीं कर पाएंगे। हाँ, वैसे ही भगवान जो वाणी बोल रहे हैं वो वाणी का अनुसरण करना है, भगवान को कॉपी नहीं करना है। तो वो बोल रहा था अर्जुन, हे कृष्ण हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया, आपके अनुग्रह से मेरी स्मरण शक्ति वापस आ गई, मैं संशय में दृढ़ हूँ, आपके आदेश अनुसार मैं कर्म करूंगा, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब लास्ट के 2-3 श्लोका 4 श्लोका है। तो अब संजय बोलता है कि है, संजय ने कहा इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन के दोनों पुरुषों महापुरुषों की वार्ता सुनी है, और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है, मैं जो सोच देख रहा हूँ शरीर में रोमांच हो रहा है। और क्या बोल रहा है, हे राजन, जब कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई आश्चर्यचकित पवित्र वार्ता को बारंबार सुनते जा रहा हूँ, प्रतिक्षण एक एक क्षण क्या हो रहा है, अल्लाद अल्लाद से खुशी के मारे मैं वो दृश्य देख रहा हूँ भगवान का, भगवान के जो रूप बताए, भगवान जो वाणी से बोले, देवताओं के बारे में बोले, खुद के बारे में बोले, भगवान के जगत के बारे में बोले, आनंद ही आनंद आ रहा मेरे को। हाँ, अब एंड फाइनल कंक्लूजन क्या है, अब वो बोल रहे थे कि भगवान के अद्भुत रूपों का स्मरण कर रहा हूँ, वो अत्याधिक क्या है, आश्चर्यचकित है। मैं वो रूप को देख के इतना आनंद हो रहा है, जो चतुर्भुज रूप बताए बहुत आनंद हो रहा है, वो बोल रहा था। एंड फाइनली भगवान को वो बोल रहा था, लास्ट श्लोका है भगवत गीता का, कि यत्र योगेश्वरो कृष्णो, ठीक है आप लोग भी मेरे साथ पढ़िए क्योंकि आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए। यत्र योगेश्वरो कृष्णो, यत्र पार्था धनुर्धरः, श्री विजयो तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्, तत्र श्री विजयो ध्रुव नीतिर्मतिर्ममा। हरी बोल। तो वो बोल रहा था, राजा को बोल रहा है, कौन, सेवक, सेवक राजा को बोल रहा है, बॉस को सर्वेंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है। अर्जुन कौन है, जो भगवान का भक्त है, जो भगवान को मानने वाला है, भगवान के आदेशों पे जो चलने वाला है। जहाँ भक्त और भगवान है वहां पे क्या होता है, वो बोल रहा है वहीं ऐश्वर्य है, वहीं विजय है, अलौकिक शक्ति भी वही है, नीति भी वही है, ऐसा मेरा मत है। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली बोल दिया कि विजय वहां पे है, बोल तो बेटा तुम्हारे पुत्र जो दुर्योधन है मरने वाला है, कौरव जितने भी है, भले ही वहां भीष्म पितामह भी रहो, मरने वाले हैं। माताजी प्रभु जी एक 10-15 मिनट मैं आपका क्लास थोड़ा ज्यादा लिया। सब लोग हरे कृष्णा 3 बार बोल के, जिसको जाना है चले जाइए। और सेकंड लेवल के बारे में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, किसी का कोई डाउट है प्लीज। और मेरे से ये 18 दिन में मेरे से कुछ त्रुटि अगर हुई, गलती से भी मैं आपके भावनाओं को, प्रभु जी ऐसा बोले, दिल टूट गया, प्रभु जी दिल को लगा, अगर मेरे से अगर कुछ गलती हो गई तो क्षमा करना माता जी प्रभु जी। तो मैं जो भी बता रहा हूँ, मेरे गुरु मेरे आचार्यों वहां से मैंने सीखा, वही बता रहा हूँ। एक पोस्टमैन का काम करा, मेरे कोई योग्यता नहीं है, तो माता जी प्रभु जी प्लीज मेरे को क्षमा करना। और मेरे से अगर कुछ जाने या अनजाने अपराध भी हुआ तो भी मेरे को क्षमा करना। जानबूझ के मैं नहीं करना, मैं करना नहीं, मैं प्रैक्टिकल बोलता हूँ कभी कभी, तो वो चुभती है बातें, इसलिए कई लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो प्लीज माता जी मेरे को क्षमा करना। और लेवल 2 में हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ग्रुप आप ये छोड़ दो होना है तो, लेकिन लेवल 2 का ग्रुप ज्वाइन करके ये ग्रुप में से एग्जिट हो जाओ। बहुत सारे ग्रुप हो गए ना प्रभु जी हमारे पास में, तो आप क्या करो, लेवल 2 का ग्रुप ज्वाइन कर लो। नहीं प्रभु जी, हमको आपसे जुड़ना है तो आप हमारे निर्गुणा देवी दासी माता जी है, उनसे जुड़ जाओ। तो सुभद्रा माता जी, अलग अलग लोग हैं, काफी लोग, हमारे क्षमा माता जी भी है जो हमारे ग्रुप में है, उनसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। हरे कृष्णा। पूजा माता जी प्रभु जी। हाँ
प्रभु जी, आपने हाँ बोला था कि आप सुबह 6 बजे की क्लास बंद नहीं करेंगे, हर रोज है ना किसी प्रभु जी की स्टोरी सुनाएंगे आप हमें। यस, कंटिन्यू रहेगा। मैं आपको ग्रुप, आप जब ग्रुप में रहेंगे ना तो आपको मैं बताते जाऊंगा। ग्रुप में रहेंगे तो आपको लिंक मैं कल भेजूंगा, यही लिंक पे क्लास चलेंगी, अलग अलग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। दूसरे दूसरे बहुत सारे टॉपिक्स है, मैं डिस्कस हमारे अब कल से हमारे जो लीडर्स है जो लेवल 2 के, मैं उन लोगों को भी आने के लिए क्लास में बोलूंगा, वो लोग भी आएंगे, उनका उनका बताएंगे सर। और कुछ भी डाउट है तो चैट में भी पूछते जाइए, काफी सीनियर लोग प्रभु यहाँ जी, पे ये खड़े हैं। भक्ति शास्त्री क्लास कब से शुरू हो रही है? आप ज्वाइन कर लो प्रभु जी, लेवल 2 जब ज्वाइन कर लेंगे तो आप यही यही वीक से स्टार्ट होगा। ये क्या बोलते हैं, सैटरडे से स्टार्ट करेंगे मेरे ख्याल से। ये बार श्यामा वल्लभा माता जी का स्टार्ट कर रहे जी, हैं। यार एक बात था हम्म प्रभु जी, ये 1 घंटे चलेगा 2 घंटे चलेगा टाइम? सप्ताह में 2 दिन जी चलेगा, 1.5 घंटा चलेगा। दूसरे टीचर 1.5 घंटा लेते हैं, मैं 2 घंटे जी, लेता हूँ। ठीक, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। पूजा कुमारी माता जी आपने हाथ उठाया। जय श्री राधे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मैया। सप्ताह में सिर्फ 2 ही दिन से क्लास रहेगी? हाँ, सप्ताह में 2 दिन चलेगा। 2 दिन में एक सप्ताह में एक अध्याय खत्म हो जाएगा। 18 अध्याय मैं लिया तो दूसरे टीचर अगर लेंगे तो जल्दी खत्म कर देंगे वो। प्रभु जी टाइमिंग क्या रहेगा? वही बोल रहा हूँ ना, शाम का समय रहता है। अभी जो बैच स्टार्ट हो रहा है, ये बैच वालों को शाम का समय रहता है। वो कोई भी समय लेते हैं, टीचर पे डिपेंड है। 7 बजे से 8 बजे, 8 बजे से 9 बजे ऐसा लेते हैं। ठीक है, राधे कृष्ण। आपकी मर्जी। और मेरी कक्षा जो है सो लेवल 2 की सुबह 6 बजे से रहती है, जिसमें तीसरा अध्याय आरंभ हो गया है। कीर्ति गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या डाउट है माता जी, अध्याय मुझे से ये लेके डाउट लेवल है 2? कि अगला जो बैच है ये तो चल रहा हम लोग का सेकंड लेवल का, तो हाँ, अगला भी आप ही लेंगे? नहीं, काफी लोग टीचर्स है, काफी टीचर सीनियर। मैं तो कुछ नहीं हूँ, समुद्र है। मैं तो एक समुद्र का एक बूंद, बूंद का भी एक छोटा सा कण हूँ। तो वैसा काफी ज्ञानी बहुत सारे सीनियर टीचर है, वो लोग लेंगे। हाँ, अगर आप ज्वाइन करेंगे, इवनिंग बैच में ज्वाइन करेंगे तो और एक टीचर मिलेंगे। नहीं प्रभु जी, हमको आपका ही बैच में आना है, आप ही का स्वागत है। ज्वाइन करना है। आप तो आप बहुत आइए, अच्छे से आप बताते आइए, हैं। आप हमारे निर्गुणा माता जी, क्षमा माता जी, वो लोग एडमिन है वहां पे, उनसे बात करिए। लेकिन तीसरे ठीक है, अध्याय से अभी चलेगा, पहला और दूसरा अच्छा, अध्याय फिर कभी मैं कवर कर लूंगा। चलो, ठीक है अलंकार प्रभु। लेकिन पहले आप जुड़ना है, वहां पे ठीक जुड़ना है, है। वहां के एडमिन को भी बोले तो वो लोग हमको लिंक भेज देते हैं, हमको सुबह वाली क्लास में जाना है। ठीक है। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा अलंकार प्रभु। शर्मा, हाँ हरे कृष्ण। अलंकार शर्मा प्रभु, आपने हाथ उठाया, क्या डाउट है? प्रभु जी मेरा डाउट तो लिया ही नहीं आपने। अच्छा ठीक है, मैं सबका ही ले लूंगा माता जी, आज लास्ट डे है, मैं किसी को नाराज नहीं करूंगा। हम्म और आप चैट में भी पूछो, हमारे मनी माता जी भी है, काफी लोग सीनियर लोग कक्षाओं में हैं। आप चैट में भी कुछ डाउट है तो पूछो, वो लोग टाइप करके इमीडिएटली आपको रिस्पांस दे देंगे। हाँ बोलिए, कीर्ति माता जी है ना, तो अलंकार। हाँ हाँ हाँ। प्रभु जी लेवल 1 में मुझे 2 लोगों को ज्वाइन कराया है, एक लेवल 1 मित्र को में ज्वाइन कराया है। क्या प्रभु? एक मित्र, लेवल 1 में 2 लोगों को ज्वाइन कराया है, एक मित्र को ज्वाइन कराया है और एक चाचा जी को ज्वाइन कराया है। हरी बोल, हरी बोल। हम लोग आपके देखो प्रभु जी आभारी है, क्योंकि कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं जो प्रचार में लगता है मैं उससे बहुत खुश हूँ। तो हम क्या करना है, ये भी प्रचार ही है, आप लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, दूसरों को ला रहे हैं। मैं बोलूँ, एक हमारे पास में, मैं उनकी अब तारीफ नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ, मेरे कोहोश से वो मेरे को अच्छा लगता था। मेरे साथ में वो एडमिन हुए, बहुत सारा सेवाएं करे, पूनम त्यागी माता जी। वो लगभग उनके परिवार के सदस्यों को, रिश्तेदारों को नहीं बोलते हुए 20 से 25 लोगों को, बस जहां पे जाते हैं, नहीं 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 ऐसा क्लास में जुड़ जाइए, जुड़ जाइए, जुड़ जाइए। वो भी तड़पते हैं, सबको लेके आते हैं। तो वैसा आप लोग भी, हम सब क्या है, भगवान का प्रचार ही तो कर रहे हैं, करना चाहिए। बहुत अच्छा एक लगा सच्चा प्रभु जी। मित्र वही है जो अब सन्मार्ग पे लाए, इसलिए उसको ले आया क्या है। बात है, क्या बात है, यही सच्चा मित्र वही है जो ये। वेरी एक्सलेंट प्रभु। और कौन है? प्रभु और जी। कौन है? हाँ अब बोलो कीर्ति माता जी। हाँ, प्रभु जी निष्क्रिय और सक्रिय अवस्था की भक्ति क्या होती है? आप लेवल 2 में आ जाइए, जी प्रभु। लेवल 2 में आ जाइए। समय नहीं है तो। और शालिनी चौधरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मुझे आज का जो ये क्लास था उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? सब क्लास के रिकॉर्डिंग मिल रहे हैं ना, मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ लेवल 1 के। हाँ, लेवल 2 समय नहीं मिल रहा, लेकिन लेवल 1 के डाल रहा हूँ, डाल दूंगा। सुदीप्ति जोशी माता जी, सुदीप्ता जोशी माता जी। जय श्री कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा मैया। अ,
ऐसा है कि लेवल 2 में मैंने तो ज्वाइन किया है, पर वो 4 बजे से है, तो 4 बजे तो मैं ड्यूटी पे रहूंगी, तो आई कांट ज्वाइन दैट। Then what you need to do is you just contact your admin, whoever may be the admin. You just tell that I want to join morning class. They will give my link, or else you can contact Akshama Mataji, or else Nirguna Mataji. They are admin and co-host. They are doing the seva of morning batch. You can contact them. ठीक है? Okay. थैंक यू सो मच। Done मैया। निधिका गाबा गाबा, अच्छा माताजी गाबा प्रभु जी। ओके माताजी बोलिए माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे ये पूछना था कि माया के तीनों गुणों में हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, लेकिन अगर हम सात्विक प्रवृत्ति में रहते हैं, सत्व गुण में रहेंगे, तो वो हम हमेशा चाहेंगे कि हम इसी में ही रहें। तो ऑलवेज हम एक गृहस्थी व्यक्ति तो नहीं रह सकता, मतलब कि समाज है, संसार है, सब कुछ है, लेकिन इसका प्रभाव तो सब हमारे सराउंड पड़ता ही है हमारे ऊपर। एक अच्छी कहानी बताता हूँ निधिका। सही बात है, आपको मैं एक कहानी बताता हूँ, सब लोग ध्यान पूर्वक सुनो ये कहानी, जो कृष्णा बुक वाले भी है वो लोग भी सुनो ये कहानी। निधिका गाबा माता जी थोड़ा एडवांस लेवल के पूछते हैं क्वेश्चंस, और वो बहुत आगे बढ़े हुए हैं भक्ति में, तो वो माता जी के लिए हम लोग एक कहानी याद आ रही है। एक्चुअली मैं ये लेवल 2 में बहुत सारे कहानियां बोलता हूँ, लेकिन लेवल 1 में कई सारों को रोकता हूँ, लेकिन मैं आज बोल दूंगा। जनक जी के बारे में एग्जाम्पल दिया गया, जनक महाराज के बारे में एग्जाम्पल दिया गया। जनक जी का एक पास टाइम बोल रहा हूँ। तो जनक जी, आप लोग सब थोड़ी देर के लिए म्यूट रहिए। तो जनक जी क्या करे, क्या करे, बहुत अच्छा सा ध्यान करते थे, भगवान की भक्ति करते थे, राजपाट अच्छा सा चलाते थे। तो वो ऐसा बोले, एक्चुअली वो भक्ति ही करते थे, लेकिन कर्मयोगियों में उनका नाम लिया जाता। तो आसपास के साधु संत क्या करे, उनको जाके पूछे, अरे भैया आप कैसा करते, हाउ यू आर मैनेजिंग, आप गृहस्थ भी है, राजा भी है, फिर आप भक्ति भी कर रहे, दिस इज टू मच, हाउ यू आर मैनेजिंग, हम तो सब संन्यास वे छोड़ दे के भगवान की भक्ति कर रहे, लेकिन आप राजपाट सब है, फिर भी आप कैसा कर रहे, बोलो ना, ये यज्ञ कर रहे, ये सब कर रहे, कैसा कर रहे। तो जनक महाराज बोले, वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन, वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन, व्हाट यू डू, आप लोग क्या करो, कल आ जाओ। कहां पे आ जाओ, कल मैं फीस्ट दे रहा हूं, अच्छा सा आपको प्रीति भोज बोलते हैं ना, उसको बुला रहा हूं, सब लोग आ जाओ। ध्यान पूर्वक ये कहानी को सुनो, कई राज खुल रहे हैं ये कहानी में। ये कहानी हमारे को कहानी नहीं है निजी, प्रैक्टिकल जो हमारे लाइफ का एग्जाम्पल है। तो वो बोलते हैं, सब लोगों को बुलाते हैं, ब्राह्मणों को, आ जाओ। अब ब्राह्मण लोग सब आ जाते हैं, कहाँ पे, दूसरे दिन। अब जैसे ही वो आ गए, आने की जरिए अब लोग क्या करते हैं, चलो डिनर अरेंज करो, क्या बोलते हैं, अच्छा सा टेबल डालो, टेबल डाल दिए, सब लोगों को कुर्सियों पे बिठा दिए, बिठा देके अच्छा सा डाइनिंग टेबल पे सब नए नए व्यंजन, वो क्या है, गुलाब जामुन था, क्या रबड़ी था, मत पूछो, बट सब वहां पे टेबल पे रख दिए खाने के लिए। अब वो खाना जैसे ही आरंभ करने वाले थे, सिर के ऊपर देखे, सिर के ऊपर जैसे ही पंखा रहता है, तो वो क्या लगा हुआ था, एक तागे से, तागा है ना, तागे से तलवार लटक रही है, हर एक कुर्सी के ऊपर तागे से तलवार लटक रही है। अब जब डाइनिंग टेबल पे ये सब आइटम रखे गए, उनको बोला गया आइए बैठिए, ये देख रहे हैं तलवार को, कुर्सी पे भी बैठ रहे थे, तलवार को देख रहे हैं। राजा बोले खा लो, अच्छा खाना है, यस, तलवार को देख रहे हैं, जल्दी जल्दी खा रहे हैं, तलवार को देख रहे हैं, सबको डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है, तलवार किसी भी क्षण कट के गिर सकती, हम मर सकते हैं। तो वो तलवार को देखते जा रहे, खाते जा रहे, खाते जा रहे, खाते जा रहे। राजा पूछे, भैया कैसा था मेरा भोजन, आप मेरे, मैं बहुत आपका आभारी हूँ, आप यहाँ पे आए हैं, अच्छा सा प्रीति भोज खाए हैं, कैसा था बोलो ना। बोल के जब पूछे, राजा जब उनको पूछे, तो वो बोलने लगे, हे राजा, दिस इज टू मच, हम तो वो टेस्ट क्या था नहीं मालूम, हम मिर्ची खाए या व्हाट स्वीट खाए, पापड़ खाए, रबड़ी खाए, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, हम तो दाल मिक्सर में डाल रहे थे, लेकिन क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ था, तलवार पे था। तो राजा बोलने लगे, यही काम मैं भी किया, मेरे पास में पत्नियां हैं, मेरे पास में राजा है, धन है, दौलत है, कभी मैं चिंता नहीं करा, मैं हमेशा चिंता करा किसका, ठाकुर का।
भगवान का। तो निधि का गाभा माता जी, आप पैसे वाले हैं, आप गृहस्थ है, आप सन्यासी है, आप ना कहाँ पे भी है, लेकिन आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमेशा चिंतन करना है, किसका? भगवान का। आपकी दो लाइफ नहीं है, मैं पत्नी हूँ, ऑफिस में चले गई, अब मैं बॉस बन गई, सबको डांटूंगी, नहीं, वहां पे भी यही समझना, मैं नित्य भगवान का दास हूँ, ये मेरे घर में जो भी लोग हैं इनकी मैं सेवा कर रहा हूँ, इनको भक्ति में लाऊंगा। तो भगवान को विस्मरण, भगवान को भूलना नहीं है, कुछ भी कर्म करना है तलवार को जैसा वो लोग याद रखिए, हमको भगवान को भूलना नहीं है। ये कहानियां कथाएं कथाएं नहीं रहती है। हाँ, तो थोड़ा सा आपको जीवन में उतारना है। और दीप्ति माता जी, जो लेवल 2 मिस करे, ये कहानी को मैं फिर नहीं बोलूंगा। दीप्ति माता जी, ये कहानी आप लेवल 2 में फिर बोलना है उस दिन, हाँ, जब जनक महाराज का एक श्लोका आता है, अब आएगा वो श्लोका के दिन। कहाँ है दीप्ति माता जी, आप है ना कक्षा में? यस है हरे आप। कृष्ण प्रभु जी है। हाँ, आप कल सैटरडे के दिन आप ये कहानी बोलना। चलो बालू प्रभु, हरे बाप रे, बालू प्रभु, हरे कृष्णा, वो डॉक्टर बालू बहुत प्रभु बहुत है, धन्यवाद। हरे कर्नाटक से कृष्ण है। प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा, बैंगलोर से है, दंडवत प्रणाम, क्या बात है, वीडियो भी ऑन कर दिए, हरि बोल, दर्शन दे दिए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि 37th बैच कंप्लीट हो गया है। हो गया क्षमा है। माता जी, पूनम माता जी को, यादव प्रभु को, नाम निष्ठादास प्रभु, सबको दिल से धन्यवाद, हरि दंडवत बोल प्रणाम। हरि बोल हरि बोल। प्रति प्रति जो भी बैच आते हैं प्रभु जी, देखने में तो ऐसा लगता है बहुत आसान है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता है। मैं बैच नंबर 1 से हूँ प्रभु जी, हरि बोल अभी हरि बोल हर बार रहता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है मैं कुछ सीखा नहीं। हरि तो बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आपकी हाँ, सेवा के लिए। आपका बस बड़ापन है प्रभु जी, देखो आप इतना सब कुछ जानते हैं, फिर भी अपने आप को बोल रहे हैं मैं कुछ सीखा नहीं, बहुत कुछ जानते हैं आप, नहीं लेकिन प्रभु जी, छुपा आप के कभी रखते भी हैं। बड़ो, कुछ ना कुछ बाकी रह ही जाता है, ऐसा लगता है कुछ मिसिंग है। सही बात है धन्यवाद प्रभु, मैं प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। थैंक्स अलॉट, थैंक्स हरे अलॉट। और कौन है अभी? और क्षमा माता जी, मैया आप उठाए हाथ, क्यों क्यों उठाए प्रभु माता जी, जी? हाँ, चैट प्रश्न आ रहे हैं रिगार्डिंग लेवल 2 के, और मैसेज भी आ रहे हैं मेरे को, तो बस वो एक छोटा सा। आप अपना नंबर डाल दीजिए, निर्गुणा माता जी भी अपना नंबर डाल सकते हैं, तो आप लोग लेवल 2 के हैं ना, तो आप लेवल 2 को देख लीजिए। क्या प्रश्न है, बोलिए बोलिए। नहीं था, मैं तो बस अनाउंसमेंट करना चाह रही थी कि अगर लेवल 2 प्रॉपर्टी तक ज्वाइन करना है सभी को, तो पहले मंदिर के नियम अनुसार आप एक बैच ज्वाइन करिए। बैच ज्वाइन हाँ, करने के बाद इसमें एडमिन होते हैं, एक बार कांटेक्ट करिए, और हमारे नंबर तो आप सभी के पास नहीं, तो आप हमसे हाँ, भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम बस आपको लेवल पहले का लिंक। आपको, हाँ, पहले टेम्पल को ये मालूम होना चाहिए, इतने लोग लेवल 2 में इवनिंग में ज्वाइन हुए, उनको समय नहीं मिल रहा, इसलिए मॉर्निंग में ज्वाइन हुए। अगर डायरेक्ट ज्वाइन करे तो टेम्पल वालों को ये नहीं मालूम होता कितने लोगों को मैं क्लास में लिया, वो लोगों को लेके आया लेवल 2 में, तो वो लोग मेरे को डांटते हैं, तो मेरे को डांटने मत दो, हाँ ठीक है। हरे कृष्ण माता जी प्रभु जी, मैं ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, अब मेरा कृष्णा बुक स्टार्ट होगा।